اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ سن لیجیے۔ آنٹی آپ؟ مریم آج چھٹی پہ تھی سو گھر میں ہی مل گئی تھی۔ صرف میرے سوال کا جواب دو مریم، اس نے موبائل کہاں سے لیا؟ محلے کی دکان سے ہی لیا تھا آنٹی۔ مریم کو سچ بتانے میں ہی عافیت نظر آئی تھی۔ پیسے کہاں سے لیے اس نے؟ اکیڈمی میں فیس جمع نہیں کرائی تھی اس نے، سر نے اسے یوں ہی فری میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ سر سلطان؟ زلیخا خاتون کی نظروں میں بے اختیار اس لڑکے کا سراپا گھوم گیا۔ اسے فیس کی کیا ضرورت تھی؟ فیس کے بدلے میں اور بہت کچھ وصول کر رہا تھا وہ۔ الٹے قدموں گھر لوٹ آئیں۔ فواد حسن کو ایک انتہائی قدم اٹھانا تھا، آخری فیصلہ کرنا تھا جسے کرنے اور نہ کرنے کے بیچ وہ مولک تھا۔ ہر روز آتا، دیکھتا، سوچتا اور لوٹ جاتا۔ پھپھی نصرت اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے سپوت کے انداز دیکھ رہی تھی، لیکن چپ سادھے بیٹھی تھی۔ انہیں وقت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے بہت پیارا سا ناولٹ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کب ٹھہرے گا درد دل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ زلیخا خاتون نے اس سے پہلے 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ اوپر تلے کی پیدائش تھی، آگے پیچھے تینوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا تھا۔ جیسے رات کی کسی پہر منڈیر پہ کوئی بلی اترتی ہے بغیر آواز کے اور آنگن میں گھوم پھر کر واپس بھی لوٹ جاتی ہے۔ سونے والے بے خبر سوئے رہتے ہیں، یوں ہی زلیخا خاتون بھی سوئی رہتی تھی بنا کسی ڈر، خوف اور خدشے کے۔ ان کی نیندوں پر آرام اور سکون کا پہرا تھا۔ دل میں اطمینان کے ڈیرے تھے کہ ان تینوں پر جو جوانی آئی تھی بڑے ہی مدھم سروں کی تھی اور ہلکے رنگوں کی، بنا آہٹ کی جوانی۔ وہ زرناب تھی جسے 16 کا سن لگا تو زلیخا خاتون کو لگا کہ سورج پوری آب و تاب سے ان کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ ایسی غضب کی اٹھان تھی کہ زلیخا خاتون اسے دیکھ کر دل تھام لیتی تھی۔ سنہری رنگت، شہد رنگ آنکھیں، چہرے کا ایک ایک نقش اس قدر خوبصورت جاذب نظر کہ گھنٹوں بیٹھ کر تکتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ لمبے بال پشت پہ یوں لہراتے تھے گویا پگھلا ہوا سونا۔ یا اللہ، ایسا خزانہ ہم غریبوں کے گھر میں جسے چھپانے کی طاقت ہم میں ہے، نہ حفاظت کی سکت۔ کوئی بیٹا ہی دیا ہوتا تو اس دولت سے میں کیوں خوف کھاتی؟ زلیخا خاتون کو گھر کی دیواریں چھوٹی لگنے لگی تھیں۔ زرناب اپنی عادات و اطوار میں بڑی تینوں بہنوں سے مختلف تھی، بے حد مختلف۔ سارا دن بس کھاتی، باتیں کرتی تھی، زبان ہر وقت چلتی رہتی تھی، کبھی اس بہن کے ساتھ تو کبھی اس بہن کے ساتھ۔ سب سے چھوٹی تھی تو سب سے لاڈلی بھی تھی۔ من چاہا کھاتی تھی، من چاہا پہنتی تھی۔ باپ گھر میں آتا تو بڑی تینوں شرماتی، لجاتی، کھانا پانی باپ کے سامنے رکھتی اور گھر کے کسی کونے میں دبک جاتی۔ اور زرناب آلتی پالتی مارے باپ کے برابر بیٹھتی اور انہی کی پلیٹ میں کھاتی۔ کھاتی تو شروع دن سے تھی، اب ان کی نگاہ اٹھی، پھر سر تھام کر رہ گئی۔ اس لڑکی کو کبھی عقل نہیں آئے گی۔ لمبے بالوں کی چوٹی سینے پر جھول رہی تھی، دوپٹہ ندارت۔ زلیخا خاتون نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہا۔ زرناب کو کہاں آتی تھی ایسے اشارے کنائیوں کی سمجھ؟ سو وہ اٹھی اور ستارہ کو جا لیا۔ گھر میں بڑی ہو سب سے، کچھ طور طریقہ اسے بھی سمجھا دو۔ ڈٹ کر باپ کے برابر جا بیٹھتی ہے۔ باپ کا کوئی لحاظ ہونا چاہیے، اس لڑکی میں تو حیا لاج نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ آئندہ سے کھانا کھاؤ تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرو۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑی، دوپٹہ اوڑھنے کا ڈھنگ بھی سکھا دو اسے۔ پلٹ کر آنگن میں آ گئی۔ زرناب باپ کے ہاتھ دھلوا رہی تھی، کوئی بات کہہ کر ہنستی جا رہی تھی۔ کندھاری انار سے سرخ ہونٹ تھے، چمکیلے ہموار دانت گالوں میں گڑھے سے بن گئے تھے ہنستے ہوئے۔ انہوں نے ڈر کے نظریں ہٹا لی، کم بخت کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ یہ والا میں لوں گی۔ ابھی چاروں سوٹ کھلے ہی تھے کہ گہرے گلابی رنگ کا سوٹ زرناب نے جھپٹ لیا۔ تینوں بہنوں نے بس ایک نظر اس سوٹ کو دیکھا، باقی ماندہ جوڑوں کے متعلق باہمی مشاورت کرنے لگی، یوں جیسے وہ سوٹ تھا ہی زرناب کے لیے۔ زلیخا خاتون دیکھ رہی تھی، بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شوخ رنگوں کا سوٹ پڑا بھی رہتا تو بڑی تینوں اتنے تیز رنگ پہننے کی عادی نہیں تھی۔ تم یہ سوٹ پہن کر ٹیوشن جا رہی ہو؟ ستارہ کی آواز پر سلائی مشین پہ جھکی زلیخا خاتون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس دن والا سوٹ پہننے ٹیوشن جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ لمبے بالوں کو بل دے کر چوٹی بناتے ہوئے اس نے ستارہ کو دیکھا۔ ہاں، کیوں؟
बहुत गहरा रंग है, और तुम तो जाती भी पैदल हो। आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले, मैं गाड़ी में चली जाती हूँ। कंघे में उलझे 2-4 बाल निकालकर अपनी उंगली पर लपेटते इसने इतनी संजीदगी से कहा कि सितारा अपना समूह लेकर पलट गई, और वह हंस पे आदत खिलखिला के हंसती। रास्ते में 100 लोग होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, हर एक की नज़रें उठेंगी, जुलेखा खातून ने मशीन में धागा डालते नपे तुले लहजे में कहा था। जरनाब ने कदरे उकताई हुई नज़रों से माँ को देखा, लबों को बेआवाज़ जुम्बिश देकर सर झटकती कमरे में चली गई। माँ को जवाब देने की जुर्रत थी न हिम्मत। अब जाऊँ? ज़रा देर बाद वो इनके सामने थी। मंझली का सियाह सूट पहन रखा था और चेहरा जैसे रात की तारीकी में सूरज बनकर दमक रहा था। आंखों में हल्की सी खफकी थी, सुर्ख होंठों को काट काट कर मज़ीद सुर्ख कर रही थी। जुलेखा खातून जैसे हार सी गई। कितने पहनावे बदलती वो, जो बन रंगों का नहीं, इसकी उठान का था। रंग तो जैसे बने ही जरनाब के लिए थे, जो रंग भी इसके बदन पे आता दहक सा जाता था। धूप दीवार पर चढ़ी और फिर आंगन में उतर आई। आंगन के एक कोने में तख्त पे सिलाई मशीन डाले जुलेखा खातून ने धूप की तपिश के साथ साथ थकावट को बढ़ता महसूस किया, तो मशीन एक तरफ धकेल कर वहीं नीम दराज हो गई। दोपहर के खाने के लिए मसाला भूनती सितारा ने बावर्ची खाने की खिड़की से माँ को लेटे देखा। दम पे रखी चाय मग में उंडेल कर ले आई। अम्मा, चाय पियेंगी? मलमल के दुपट्टे का पल्लू चेहरे से हटाकर उन्होंने मुंदी मुंदी आंखों से देखा। भाप उड़ाता चाय का मग सामने था। शफकत से मुस्कुराती। सितारा जैसी बेटियां दुआ की सूरत होती हैं, जिन्हें रब कबूलियत के बाद दोबारा अपने बंदे की तरफ लौटा देता है। जीते रहो मेरी बच्ची, हज़ारों खुशियाँ पाओ, उन्होंने बड़े दिल से दुआ दी थी। तभी दरवाज़ा धड़धड़ाया था। जरनाब आ गई। सितारा ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। इसने हाल ही में कॉलेज में दाखिला लिया था। सफ़ेद यूनिफॉर्म में तपे तपे से चेहरे के साथ अंदर आई थी। ओफ माँ, बहुत गर्मी है, तौबा, सर जल रहा है मेरा। सितारा आप ही जल्दी से कोई शरबत पिलाते हैं, वरना मेरी जान निकल जाएगी। बड़ा सा दुपट्टा उतार कर एक तरफ पटकते हुए इसने पेट स्टफ पहन का रुख अपनी तरफ किया और चौकड़ी मार कर बैठ गई। पसीने के कतरे इसकी कनपटियों से बहकर गर्दन तक आ रहे थे। गाल सुर्ख, आंखें थक कर मज़ीद ख्वाबनाक हो गई थी। हम तो पसीना आने से मैले कुचैले लगने लगते हैं, और जरनाब पहले से भी ज़्यादा निखल जाती है। मंजली की कही कही बात अचानक उनके जहन में आई थी। अच्छा अल्लाह पाक, जैसी सूरत अच्छी बनाई है, वैसे ही नसीब भी अच्छा ही लिखना। जाने किन अंदेशों का शिकार रहता था उनका दिल, जिसने बड़ी शिद्दत से जरनाब को देखकर बस यही चाहा था। लेकिन हर चाह के नसीब में वसाल नहीं होता, इस बात का इल्म तब उन्हें नहीं था। वो बुटीक में ऑर्डर के सिलाई किए हुए कपड़े देकर आ रही थी जब जरनाब के दोस्त मरियम को एकेडमी से तन्हा वापस आते देखा। मरियम, जरनाब नहीं आई तुम्हारे साथ? उन्होंने बेसाख्ता इसे रोक लिया था। इसके कुछ प्रैक्टिकल रहते थे, इसलिए रोक गई। एकेडमी ज़्यादा दूर नहीं थी। जरनाब को लेने के इरादे से अपना रास्ता बदल गई। कंप्यूटर लैब के ग्लास डोर के हैंडल को थामते हुए वो एक पल को ठिठक सी गई थी। अंदर का मंजर बहुत साफ और वाजे था। वो लंबे चौड़े डेल डोल का लड़का था। गिरेबान के चंद बटन खोले थे। वो जरनाब के बराबर खड़ा इसके कीबोर्ड पर इस हद तक झुका हुआ था कि जरनाब का शाना उसके सीने को छू रहा था। दोनों की नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। वो कुछ बोल रहा था, समझा रहा था, और जरनाब मुसलसल सर हिलाकर उसके एक एक लफ्ज़ को गोया अजबर कर रही थी। लेकिन इसका चेहरा, एसी की ठंडक में भी इसका चेहरा उस रोज़ से ज़्यादा तपा हुआ था जिस रोज़ वह गर्म चिलचिलाती धूप में कॉलेज से घर वापस आई थी। जुलेखा खातून का बदन जाड़े के बुखार की तरह लरस रहा था। उनकी बेटी अनजान थी या बेहिजाब, ये फैसला करने का भी वक्त नहीं था। शीशे का वो दरवाज़ा खोलने के लिए इन्हें पूरी कुव्वत सर्फ करना पड़ी थी। जितनी देर में वो अंदर दाखिल हुई, मंजर बदल चुका था। वो लड़का अब दोनों हाथ उठाए लैब में मौजूद चंद लड़कियों को अपनी ज़ुबान में लेक्चर देने लगा था। अम्मा, आप यहाँ? जरनाब ने उन्हें देखा। अगले ही पल अपना बैग उठाए इन्हें खामोश रहने का इशारा करती बाहर खींच लाई ताकि लेक्चर में खलल ना आए। ये क्या हो रहा था? प्रैक्टिकल कर रही थी। कंप्यूटर की शक्ल तक तो कभी देखी नहीं, ऑपरेट करना कैसे आए? हाँ अम्मा, एक कंप्यूटर ही ले दें। किस सदी में रह रहे हैं हम लोग? बच्चा बच्चा लैपटॉप टैब पे गेम्स खेलता है, और हम हैं कि? अपनी ही दास्तान सुनाती खटखट एकेडमी की सीढ़ियाँ उतरती चली गई थी। रात हौले हौले बीत रही थी। जुलेखा खातून की आंखें यूं खुली थी जैसे नींद उनमें कभी उतरी ना उतरेगी।
वो एक ही मंजर था, आंखों में घात लगाए बैठा था और उनकी नींद पे बार बार गुर्राता था, ज़री एकेडमी जाना लाजमी है क्या? लड़कियां कमरे में खटर पटर बंद करके अपने अपने बिस्तरों पे आ गईं। जरनाब सबसे बाद में आई, उनके बराबर चारपाई पर आकर लेटी तो बेख्तियार ही बोल उठी, आप सोई नहीं अभी तक? हाँ। इतना थक जाने के बाद अब तक सो जाना चाहिए था, पता नहीं आज नींद क्यों ही नहीं आ रही। वो बुड़बुड़ाई, मैं तुमसे पूछ रही थी कि एकेडमी कंप्यूटर नहीं है घर में, ICS कर रही हूँ, कंप्यूटर के बगैर सारी तैयारी कैसे होगी? जरनाब का लहजा कुछ सख्त सा लगा। अपने वक्तों के मिडल पास ज़ुलेखा खातून के लिए ICS का नाम ही बड़ा बारूब था, पता नहीं कैसी मुश्किल पढ़ाई है। उन्होंने सोचा, कंप्यूटर नहीं तो एकेडमी जाना होगा, एकेडमी जाएगी तो बिस्तर पर कांटे उगाए थे और ये दुनियादारी को पढ़ाना भी कितना मुश्किल है। मासूम सी बच्ची, कैसे समझाऊं, क्या कहूं? मर्द भी अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कैसे कैसे तरीके ढूंढ लेते हैं। वक्त से पहले आगाही दे दूं, क्या कहूं इससे? रात भर सोचती ही रही। आखिरी पहर में आंख लगी, सुबह आँख खुली तो वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुनो जरनाब, आज तुम एकेडमी मत जाना। रात की तारीकी में जमाशुदा सारे लफ्ज़ दिन के उजाले में कहीं खो गए तो इन्हें कहना बहुत आसान लगा था। क्यों? हालात ठीक नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब है बेटा, मेरा दिल नहीं मानता तुझे अकेले कहीं भेजूं। अकेले क्यों? मरियम मेरे साथ होती है, नादिया फरीहा भी होती हैं एकेडमी में। होती होंगी, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, वो तब कर कह गई। मैंने क्या बेवकूफ़ी की है? बाकी तीनों हैरत से जरनाब और माँ को देख रही थी। ये कैसी बहस थी? तुम्हारे लिए कंप्यूटर आ जाएगा घर में, जब आ जाएगा मैं एकेडमी जाना छोड़ दूँगी, फैसला कुन अंदाज में कहकर चली गई थी। ज़ुलेखा खातून बुटीक से आर्डर लेने गई तो पहले से दुगने कपड़े उठा लाईं। सितारा और मछली बाकायदा खफा हुई, कमर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा है। ऐनक का नंबर बढ़ गया, क्यों ख़ुद को इतना हल्कान कर रही हैं? 2000 हर माह एकेडमी जाते हैं, कंप्यूटर होगा तो इन्हीं पैसों की बचत हो जाएगी। सबसे बढ़कर तो इज़्ज़त बचानी है मुझे। उन्होंने बात बनाई और जुट गई। तीनों बेटियां साथ निभाने लगीं। किसी ने बटन लगाए, तुरपाई करने का काम संभाल लिया, कोई पाइंचे बनाने लगी। जरनाब अलबत्ता इसी मामूल के मुताबिक कॉलेज और एकेडमी जाती रही। जरनाब के कॉलेज से फ़ोन आया था। ज़ुलेखा खातून ने ही सुना। आप जरनाब की वालदा बात कर रही हैं? जी जी बोल रही हूँ, खैरियत? वो घबरा सी गई। इन्हें आज तक कभी किसी स्कूल कॉलेज से फ़ोन नहीं आया था। या अल्लाह खैर। उन्होंने खामोश लबों से दुआ की। दिल अलग से धड़ धड़ करने लगा था। आप अभी और इसी वक्त कॉलेज तशरीफ़ ले आए, बेहद ज़रूरी है आपका आना, कोई मामूली बात मत समझिएगा। ठक की आवाज़ से रिसीवर रख दिया क्या? ज़ुलेखा खातून चादर ओढ़े हाँपते काँपते रिक्शे में जा बैठी। हर मोड़ पर वहम का एक नया अज़दहा फुनकारता और इनके दिल में कुंडली मारकर बैठ जाता। कॉलेज का रास्ता था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और जब ख़त्म हुआ तो वो अपनी आधी से ज़्यादा तवानाई खो चुकी थी। रिक्शे वाले को किराया दिया तो बकाया लेना भी याद ना रहा। क्यों बुलाया है मुझे? क्या कहेंगे? क्या देखने को मिलेगा आज? लंबी रविश थी, फिर सीढ़ियाँ, फिर पुख्ता बरामदा और कॉरिडोर। आप? चौकीदार मुस्तैदी से उठा था। मैं जरनाब की वालदा हूँ। अभी भी यहाँ से फ़ोन? आप अंदर चली जाइए। प्रिंसिपल के ऑफ़िस का दरवाज़ा खोल दिया गया था। उनकी नज़रों के सामने मेज़ की चिकनी सतह पर एक मोबाइल पड़ा था। ये मोबाइल जरनाब के बैग से निकला है। वो तस्लीम कर चुकी है कि मोबाइल उसी का है और वो इसके ज़रिए अपने किसी बॉयफ्रेंड से बातें करती है। यह कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है जहाँ तलबा और तालबात को हर अच्छा बुरा काम करने की इजाज़त दे दी जाए। ये गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ गरीब और मुतवसत घराने की बच्चियाँ अपना मुस्तकबिल संभालने आती हैं। हम 2 दफ़ा जरनाब को वार्न कर चुके हैं कि हमारे कॉलेज में बच्चियों को मोबाइल लाने, इस पर बातचीत करने की इजाज़त नहीं है। इसने हमारी वार्निंग का कोई नोटिस ही नहीं लिया। अब हम आपकी बच्ची को मज़ीद मौका नहीं दे सकते। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जरनाब हमारे कॉलेज में अपनी तालीम मज़ीद जारी नहीं रख सकती। हमारे चौकीदार ने यह भी बताया कि जरनाब सुबह के वक्त कॉलेज आने के बजाय बाहर से ही किसी लड़के के साथ चली गई थी और फिर छुट्टी से 1 घंटा पहले आई है। इसके बास पुरस करने पर जरनाब ने इससे झगड़ा किया। नतीजतन ये सारी बात हमारे सामने आ गई। इसी पे मौकूफ़ नहीं था, प्रिंसिपल ने और भी बहुत कुछ कहा था। इज़्ज़त, नेकनामी, बदनामी, बेटियों की तरबियत, माँ के फ़राइज़, क्या कुछ नहीं कहा गया था। मगर ज़ुलेखा खातून को सुनाई देना बंद हो गया था। हाँ, समझ में आ रहा था
کہ کیا کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ان کے بائیں جانب 3 لڑکیوں کے ساتھ قطار بنائے کھڑی تھی۔ یہ تینوں لڑکیاں اس کی ہمراز ہوں گی یا مخبر ہوں گی۔ زلیخا خاتون بدقت تمام کھڑی ہوئی۔ زرناب نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر ماں کا چہرہ دیکھا، جہاں رتی بھر خون کی رمق نہ تھی۔ یہ اعزاز، یہ رتبہ دینے کے لیے تو نے ماں کو یہاں بلایا تھا؟ پتہ نہیں زلیخا خاتون میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ ان کا ہاتھ اٹھا تو زرناب کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی، پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ جا گری۔ ذرا سی بھی شرم ہوتی تو آج گھر مت آنا، ڈوب مرنا راستے میں ہی کہیں۔ پرنسپل کے دفتر سے نکلیں تو پھر رکی نہیں، کالج کا گیٹ بھی پار کر گئی۔ گھر کے مستطیل نما کمرے میں ان کا کوئی 1000واں چکر تھا۔ اس کے بعد قدم لڑکھڑا سے گئے تو قریب رکھی کرسی پر ڈھہ گئیں۔ بڑی عجیب کیفیت تھی، نہ رونا آ رہا تھا نہ غصہ تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں اندھی تھی، بہری تھی، مجھے کچھ دکھائی کچھ سنائی کیوں نہ دیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی، دل میں خدشے پالتی رہی اور آنکھوں پہ یقین کی پٹی باندھے رکھی۔ کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس لڑکی کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے وہ بد کردار بھی ہو سکتی ہے؟ وہ گھڑی کے پنڈولم کی طرح جھول رہی تھی۔ کیا کوئی بھی ماں یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کی بیٹی؟ ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل پہ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کیا کرنے گئی تھی؟ کیا کر کے آئی تھی؟ احمد کرم کو دکان سے بلواؤں؟ انہیں بتاؤں کہ ان کی لاڈلی کے کرتوت؟ موبائل کہاں سے آیا اس کے پاس؟ یہ سارے جواب جس سے مل سکتے تھے وہ اگلے 10 منٹ میں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ آنٹی مریم آج چھٹی پہ تھی، سو گھر میں مل گئی تھی۔ صرف میرے سوال کا جواب دو مریم، اس نے موبائل کہاں سے لیا؟ محلے کی دکان سے ہی لیا تھا آنٹی۔ مریم کو سچ بتانے میں عافیت نظر آئی تھی۔ پیسے کہاں سے لیے اس نے؟ اکیڈمی میں فیس جمع نہیں کرائی تھی اس نے، سر نے اسے یوں ہی فری میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ سر سلطان؟ زلیخا خاتون کی نظروں میں بے اختیار اس لڑکے کا سراپا گھوم گیا۔ اسے فیس کی کیا ضرورت تھی؟ فیس کے بدلے میں اور بہت کچھ وصول کر رہا تھا وہ۔ الٹے قدموں گھر لوٹ آئیں، دروازہ بھیڑ کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ آ گئی کلموہی۔ انہوں نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ بی بی جی۔ رکشہ ڈرائیور کا ہونک پن، بوکھلایا ہوا انداز، انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی، نہر میں کود گئی جی۔ وہ بولا نہیں تھا، سور پھونکا تھا اس نے۔ گھر کے بام و در، چھتیں، دیواریں، کچھ بھی تو اپنی جگہ پہ نہیں رہا تھا۔ اور قیامت کیسے آئے گی؟ آ ہی تو گئی تھی۔ نہر کے پل پہ پہنچے تو کہنے لگی بھیا میری کتاب گر گئی، میں نے رکشہ روک دیا۔ وہ اتری، پل کی دیوار پہ پاؤں رکھا، پلک جھپکتے میں نہر کے اندر۔ وہ زلیخا خاتون کا نہیں، محلے کے جمع ہوتے لوگوں کو بتا رہا تھا۔ زلیخا خاتون نے کھوئی کھوئی نظروں سے سب کو دیکھا، کھڑے قد سے زمین پر آ رہی۔ رات ہو گئی تھی، نیزے کی انی جیسی دوپہر بیت گئی تھی، کہیں گئی نہیں تھی، دلوں میں گڑ کے رہ گئی تھی۔ نہ جانے کتنے پل، کتنی صدیاں بیت گئیں۔ تب زلیخا خاتون نے آنکھیں کھولی۔ برابر کی چارپائی پہ احمد کرم بیٹھے تھے، دونوں ہاتھوں پہ سر گرائے وہ رو رہے تھے۔ آنسوں کا نمکین پانی ان کی آنکھوں سے نکل کر جھریوں زدہ چہرے پہ لکیریں ڈالتا ان کے پیروں پہ گر رہا تھا۔ زلیخا خاتون نے بمشکل خود کو سنبھالا دے کر اٹھایا، چہار اطراف میں دیکھا۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ان کے کسی اندازے کی تصدیق یا تردید نہیں کر پایا تھا۔ وہ مر گئی؟ پتہ نہیں کیسے ان کے منہ سے نکلا۔ احمد کرم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ وہ نہیں مری زلیخا خاتون، میں مر گیا، احمد کرم مر گیا۔ پھر سے سسک اٹھے تھے۔ نہر میں کئی لوگ نہا رہے تھے، زرناب کو گرتے دیکھا، کتنوں نے غوطہ لگا دیا۔ نہر لوئر ہاری، دو آب اپنے آغوش میں آنے والے کسی بھی فرد کو اتنی آسانی سے نہیں لوٹاتی۔ تاریخ گواہ تھی، پتہ نہیں خوش نصیبی تھی یا بد نصیبی کہ اسے بچا لیا گیا۔ لیکن احمد کرم نے جن حالات، جن سوالات کا سامنا کیا، اس سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ پچھلے 7 گھنٹوں میں انہوں نے جو کچھ سنا اور سہا، اپنی ساری زندگی میں شاید کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کی ایک ہی ضد تھی، یہ پولیس کیس ہے، پولیس کے آنے تک میں پیشنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ جانے انجانے چہرے، ہمدرد، مضحکہ اڑاتے، تجسس سے بھرپور، ان کے ارد گرد ایک مجمع تھا، اور وہ ایک بونے تھے۔ آج ہر انسان کا قد ان سے بڑا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، پیشانی ٹیک دی۔ میں نہیں سہ پاؤں گا، اس سے پہلے میں مر جاؤں گا۔ وہ ایسی لاچاری سے کرلائے کہ ڈاکٹر کے دل میں رحم آ گیا۔
जरनाब की ज़िंदगी बाकी थी, सो इसे बचा लिया गया। वो तो गलती कर ही चुकी थी, तुम क्यों आपे से बाहर हो गई? इसके क्लास फेलोज़, इसके असातिज़ा, इसके प्रिंसिपल के सामने तुम इसके मुंह पर थूक कर चली आई। इसकी अना, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने इंतहाई कदम उठा लिया। ये से अगली सुबह थी जब अहमद करम को इल्ज़ाम देते देखकर वो सदमे से उठकर उनके सामने चली आई थी। वो हमारी नेक नामी, हमारी इज्जत को कुचल कर, हमारी आंखों में धूल झोंक कर कॉलेज से किसी लड़के के साथ गई। कौन था वो? क्या लगता था इसका? पूछा आपने इससे? कौन सी अना, कौन सी खुददारी, कैसी इज्जत नफ्स? जो लोग ये खूबियाँ रखते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते अहमद करम। हाँ, मैंने इसके मुँह पे तमाचा मारा, माँ हूँ इसकी, हक रखती हूँ इस पर। ये हक घर की चार दीवारी में इस्तेमाल करना चाहिए था ज़ुलेखा खातून। हक तो मैं भी रखता हूँ तुमसे पूछने का। 4 जवान बेटियाँ हैं तुम्हारी, कैसी मदहोश रहती थीं कि बेटी इस मुकाम तक आन पहुँची, तुम्हें खबर तक ना हुई। बस एक यही सुनना बाकी रह गया था। उनके मुंह पे कुफर लग गया। जो तमाचा उन्होंने जरनाब के मुंह पे मारा था वो पलटकर उनके मुंह पे आ लगा था। कम अज़ कम ज़ुलेखा खातून को तो यही लगा था। घर की फ़ज़ा में ख़िज़ां से बढ़कर वीरानी थी। सिलाई मशीन के पास कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और ज़ुलेखा खातून जैसे सारे ज़माने से खफा मलमल का दुपट्टा मुंह पे डाले पड़ी थी। दिमाग की रगें बहुत कुछ सोच सोच कर थक गई थी। फिर जाने दिल में क्या आई कि झटके से उठी और सीधा लड़कियों के कमरे में जा खड़ी हुई। मंजली सो रही थी, छोटी किताबों में सर दिए बैठी थी। सितारा नीम तारीख कमरे में किसी कमीज़ पे कढ़ाई करते अपनी आंखें फोड़ रही थी। माँ को अचानक सामने देखकर बुरी तरह चौंकी। 3 दिन हो गए थे, दुआ कलाम सलाम सब छोड़े बैठी थी। ज़ुलेखा खातून की तवज्जो सिर्फ ज़रनाब पे मरकूज़ थी। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे माइयों की दुल्हन की तरह न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। ज़रनाब! उनके पुकारने पर वो चौंकी, उन्हें देखा, फ़ौरन नज़रें चुरा गई। वो कौन था ज़रनाब? ज़रनाब ने अपने होंठ बुरी तरह कुचले थे। बताओ, किसके साथ गई थी? क्या कहा इसने तुमसे? कहाँ लेकर गया था वो? बताओ ज़रनाब। उन्होंने इसका सर धात अपने हाथों में दबोच लिया था। इसने तुम्हारी कोई तस्वीर तो नहीं ली, कोई वीडियो तो नहीं बनाई ना तुम्हारे साथ? ज़माना बहुत ख़राब है मेरी बच्ची। वो कुछ हो जाता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कुछ तो बोलो ज़रनाब। उसने मुझसे शादी का वादा किया है, कहता था अपने वालिदैन को भेजेगा। शादी? वो बोली तो ज़ुलेखा खातून को चुप लग गई। उन्होंने सितारा को देखा जो टाँका भरना भूल गई, फिर मंजली को जिसका कद 4 पाई के बराबर था, और छोटी जिसने ज़रनाब की बात सुनकर किताब में सर घुसा दिया। उन्होंने हैरानी से ज़रनाब को देखा। वो 17 साला लड़की किसी अजनबी लड़के के साथ अपनी शादी को प्लान कर रही थी। क्यों ज़रनाब, ऐसा क्यों? तुमसे बड़ी उम्र की 3 बेटियां भी कंवारी बैठी हैं, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों? मुझे नहीं, उसे जल्दी है। वो घर में सबसे बड़ा है। ये फ़ैसले तुम्हारे करने के तो नहीं हैं, हम जिंदा हैं अभी। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती माँ। वो इतना अच्छा, इतनी मोहब्बत करने वाला है कि लड़कियाँ ऐसे मर्द का सिर्फ ख्वाब ही देख सकती हैं। बकवास बंद करो। गैर मर्दों के ख्वाब तुम जैसी बेहया आंखों में ही उतरते होंगे ज़रनाब, जिससे ये भी शर्म नहीं किसके सामने बैठकर क्या बातें कर रही है। ये ज़ुलेखा खातून नहीं, ये सितारा थी जो भड़क उठे थे। पिछले 3 दिन से इसकी नाज बरदारियों में लगी सितारा गुज़श्ता सारे मामले को किसी गलत फहमी का नतीजा समझ रही थी। आज ज़रनाब को अपने मुंह से कुछ कहते सुना तो मारी शर्म के बर्दाश्त न कर पाई थी। रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ज़ुलेखा खातून ने ज़रनाब को यूँ देखा जैसे कोई बच्चा डोर से कट जाने वाली पतंग को आसमान में डोलते हुए नीचे गिरते देखता है, या फिर अपने हाथ में रह जाने वाली डोर को। इस नज़र में गम होता है और दिल में कहीं पछतावे का एहसास भी। काश पतंग डोर से न कटी होती। लंबी सी गाड़ी थी जिसमें से एक अजनबी खातून करोफर के साथ उतरी और घर के खुले दरवाजे से अंदर ही अंदर घुसती चली आई। ज़रनाब कौन है तुम में से? ज़ुलेखा खातून के बुखार ज़दा बदन पर तीनों बेटियों का पहरा था। कोई टांगे दबा रही थी, कोई दवा लिए खड़ी थी, कोई खिचड़ी के एक निवाले के लिए मिन्नत कर रही थी, और जो 22 मर्ज थी वो सामने ही ना आई थी। खातून मुंतज़िर निगाहों से एक एक चेहरे को देख रही थी। तभी हवा के झोंके की तरह ज़रनाब कमरे में दाखिल हुई।
मैं हूँ जरनाब। आप अपना तारुफ हवा बहार की थी। किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही ना पड़ी थी। खातून ने निगाह उठाकर सब्ज़ रंग के लिबास में खड़ी जरनाब को देखा तो फिर कई लम्हे देखती ही रही। मैं सुल्तान की माँ हूँ, उन्होंने तवील सांस लेकर कहा। जुलेखा खातून के एक इशारे पर तीनों लड़कियाँ एक एक करके कमरे से बाहर निकल गई। मैं चाय लेकर आती हूँ। जरनाब के वजूद में बिजली से भरी थी। मोहब्बत फ़ातिह आलम बनने जा रही थी। ये बाहर गाड़ी किसकी? अहमद करम पूछते हुए आ रहे थे। जवाब मुजस्सम सामने था। जुलेखा खातून ने पिछले 10 दिनों में शायद पहली सांस अहमद करम को देखकर ली थी। बहुत कीमती ख़जाना है आप लोगों के पास। हैरत है कि खुलेआम चरख छोड़ा है। चुपता हुआ लहजा था। अपने आने का मकसद बयान करें खातून। अहमद करम के लहजे में तपिश थी। हम खाते पीते लोग हैं जनाब। सुल्तान की मंगनी 2 साल पहले मेरी भांजी के साथ हो चुकी है। ये मंगनी इतनी धूमधाम से हुई थी कि रिश्तेदारों में 2 साल के बाद भी इस मंगनी का तस्करा ज़ोरों शोर से होता रहता है। हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी वैल्यूज़ हैं। ये हमारी बदकिस्मती कि वो तफरीहन अपने दोस्त की एकेडमी को ज्वाइन कर बैठा और यहीं आपकी बेटी को मौका मिल गया अपने लिए एक तगड़ा मुर्गा फांसने का। अहमद करम ने कुछ कहना चाहा लेकिन खातून सुनने के मूड में नहीं थी। वो जरनाब के लिए अपनी जान देने पर तुला हुआ है। हमारा इकलौता बेटा है। सच्ची और साफ बात कहूँगी, इसके मजबूर करने पर मैं यहाँ आ तो गई हूँ। इसकी कोई गारंटी नहीं दूँगी। ये शादी खुफिया रहेगी। वो इसे कहाँ रखता है, कैसे रखता है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ख़ानदानी बहू वही होगी जहाँ हमने इसकी बात तय की है। अहमद करम ने बहुत सब्र और बर्दाश्त से इसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार किया। बात यह है खातून, अब मेरे घर में आई हैं। मैं किसी भी बद तहज़ीबी का मुज़ाहरा करना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि आप किसी गलत फहमी में तशरीफ़ ले आई हैं यहाँ। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर रिश्ते नहीं किए जाते। जरनाब की बात बचपन से ही इसकी फुप्पी ज़ात फवाद हसन से तय है और इसी जुम्मे इन दोनों का निकाह भी है। ज़रूरी समझा तो शायद रुखसती भी साथ ही कर दूँ। आप मुतमईन होकर जाइए और बेटे को समझाइए। हो सके तो फौरी तौर पर इसकी शादी भी अरेंज कर दें ताकि दूसरों की बहू बेटियों पर तफरीह नज़र न डालें। अब आप जा सकती हैं। अहमद करम का नपा तोला लहजा और उनका एक एक लफ्ज़ कमरे में ही नहीं कमरे से बाहर भी सुना गया था। सुल्तान की माँ शादाओं फरहां जाने के लिए उठी। आप तो खासे समझदार इंसान हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। चलती हूँ। और हाँ, ये निकाह राजदारी से ही कर दीजिएगा। मैं भी सुल्तान को ख़बर नहीं होने दूँगी। फ़िलहाल यही कहूँगी कि आप लोगों ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। उनकी तो जैसे दिली मुराद बर आई थी। घिसटती हुई आई थी, उड़ती हुई लौट गई। चूल्हे के पास बैठी जरनाब को गोया सांप सूंघ गया। चूल्हे पर चाय का पानी खौलता रहा, यहाँ तक कि सितारा ने आकर चूल्हा बंद कर दिया। कमरे में सनसनाती हुई खामोशी थी। जुलेखा खातून की सवाल करती निगाहें थी और अहमद करम का झुका हुआ सर था। क्या वाकई आपने फ़ैसला कर लिया है? नुसरत मान जाएगी। बहन है मेरी, पगड़ी पैरों में रख दूँगा तब भी ना मानेगी। जुलेखा खातून ने दोबारा मुंह खोला। पूछना चाहती थी जरनाब मान जाएगी, लेकिन चुप हो रही। अगर अहमद करम फिर वही जवाब दे देते कि पगड़ी पैरों में रख दूँगा तब भी ना मानेगी, तो वो सहम कर अपने कपकपाते बदन को चादर में छुपाने लगी। अहमद करम ने बहन को नहीं बुलाया था, खुद उसके घर गए थे। जुलेखा खातून को भी साथ लेकर ना गए। वो इंतज़ार की सूली पर लटकती रहीं सारी शाम, फिर रात का अव्वलीन पहर। जब दरवाजे की कुंडी बजी और सितारा किसी साए की तरह कुंडी खोलकर फिर से कमरे की तारीकी का हिस्सा बन गई। जुलेखा खातून ने बड़े सब्र से शौहर के बैठने, फिर तकिए पे सर रख देने का इंतज़ार किया। मान गई नुसरत? उन्होंने बेताबी से पूछा। अच्छा, फिर कब? इसी जुम्मे। इसी जुम्मे? जुलेखा ने झट अपनी उंगलियों पे गिनती की। आज मंगल है, बुध, जुमेरात, बस 2 दिन हैं बीच में। ये 2 दिन गुजर जाएंगे। कैसा अजीब सा सवाल कर रही थी जुलेखा। बेटी ने झल्ली कर दिया है इसे, उन्होंने दिल में सोचा। तुम जरनाब से कुछ मत कहना, इससे बात मैं खुद करूँगा। वैसे तो उम्मीद है कि सुल्तान की माँ ने जो कुछ कहा है इसका दिमाग किसी हद तक ठिकाने पर आ गया होगा। अहमद करम ने करवट बदली। जुलेखा खातून अपने बिस्तर पर जा लेटी। दवा खा ली थी, फिर भी नींद बड़ी देर से आई। मैं कमरे में ही सोऊंगी, उन्होंने गनूदगी के आलम में सुना। जरनाब तकिया उठाकर कमरे में जा रही थी। उन्होंने बमुश्किल आंखें खोलकर देखा। सितारा भी अपना तकिया उठाए इसके पीछे कमरे में जा रही थी।
मेरी सियानी थी। सोने से एक लम्हा कबल इन्हें इत्मीनान दिलाने वाली सितारा ही थी। बस 2-2.5 घंटे की नींद ली थी उन्होंने। अचानक ही आंख खुल गई। नफल पढ़ने की नीयत से वज़ू करने उठी। सहन की बत्ती जलाई। सहन के आखिरी कोने में बाथरूम की तरफ जाते हुए उनकी निगाह बैरूनी दरवाजे पर पड़ी जिसकी कुंडी लटक रही थी। हाय, दरवाज़ा किसने खोला? एक पल की हैरत थी। दूसरे पल में किसी वहम का अजदहा फुनकारा और वो उल्टे पांव भागी। जरनाब का बिस्तर खाली था, बेशिकन। कमरे की जानिब लपकी। इस मुख्तसर मुसाफत में उनके बदन के रुएं रुएं ने दुआ की थी कि जरनाब कमरे में हो, गहरी नींद में। मगर हर लम्हा दुआ की कबूलियत का नहीं होता। कमरे में सिर्फ सितारा थी। जरनाब के जाने का किसी को इल्म न होता अगर अहमद करम न चला जाता। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो किसी सदमे सानिहा का बोझ उठाने की सख्त ना रखने पर ख्वाहिश करते हैं कि काश उन्हें दूसरा सांस ना आए। और इन्हें दूसरा सांस नहीं आता। अहमद करम ऐसे ही खुश नसीब थे। उन्होंने शिद्दत से ख्वाहिश की और कटे हुए शहतीर की तरह गिर गए, फिर किसी के उठाने से ना उठे। ज़ुलेखा खातून ने भी शिद्दत से चाहा वो मर जाएं। पता नहीं क्यों इन दिनों उनकी कोई दुआ कबूल ही ना होती थी। वो सदमे से गुंग बैठी रोती कुरलाती बेटियों को देखती रही। कोई जाए, जाकर इसे भी बताए। वो बाप की मौत पर अपनी खुशियों के सेज सजाने गई है। इसे ये भी बताओ जो खाक अपने बाप के सर में डाल गई है, इसका बोझ इसे मनो मट्टी तले ले गया। कोई जाए, इसे बताए कि दिलों को रौंद कर खुशियाँ नहीं मिलती। वो बेसकून रहेगी, तड़पेगी, खुशियाँ रास नहीं आएंगी इसे। जाओ, बताओ। उन्होंने बैन कर डाले थे। आंखें पत्थर हो गई थी, लब मुंजमिद, ना आंसू गिरे ना आह निकली, बस सरापा आलम बन कर बैठ रही। बस इतनी सी बात थी। इसने हैरत से अपने सजे संवरे रूप को देखा। वो सुल्तान के फ्लैट में थी और इसके निकाह में थी। बस सिर्फ इतनी सी जुर्रत चाहिए थी मनपसंद साथी को पाने के लिए। बस एक छलांग, और वह समाज की हदूद और क़यूद से आज़ाद होकर मोहब्बत की पुरजोश पनाहों में थी। कितने बेवकूफ़ होते हैं मोहब्बत में जान देने वाले। महबूब को पा लेना कोई मुश्किल है क्या? इसने तफाखुर से सोचा। सुल्तान को शॉपिंग के बाद इसे फ्लैट में छोड़ गया था। मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ। जानती हो ना, वो जाते जाते पलटा, दुल्हन सुहाग रात के लिए किस तरह तैयार होती है। इसके लहजे और अंदाज पर वो बुरी तरह शर्मा गई थी। सुर्ख और सब्ज़ रंग के इम्तजाज का लिबास, मेकअप, कुछ जेवरात पहनकर इस पर दुल्हनापे का वो रूप आया था जिसे देखकर सुल्तान शशता रह गया था। ये तुम हो जरनाब? वो इसे दोनों कंधों से थामे हैरत ज़दा था, और जरनाब गोया इसके लम्ब से पिघली जा रही थी। वो इसे लेकर फ्लैट के इस कमरे में आ गया जो अब तक बंद था। सुर्ख गुलाबों से सजा, महका हुआ, वैसे ही जैसा सुहाग रात के लिए सजाए जाने वाला कमरा होता है। वो रात जरनाब ने फूलों पे बसर की थी। वो आज रात ज़मीन पर नहीं थी, आसमान पर थी। हंसी थी या कलकल करता कोई पहाड़ी झरना। माई खैरा ने सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। सर झटक कर मुस्कुराते हुए दोबारा से अपने काम में जुट गई। ये फ्लैट इसे हाल ही में काम के लिए मिला था। नया शादीशुदा जोड़ा था। लड़का फ्लैट का दरवाज़ा खोलता और फिर से कमरे में गायब हो जाता। लड़की बहुत कम दिखाई देती थी। कभी सामना होता भी तो वह हौले से मुस्कुराकर माई खैरा को सलाम करती, और माई खैरा ता देर इस मुस्कुराहट में खोई रहती। किसी बहुत ही अच्छे घराने की लगती है। खूबसूरत तो खैर है ही, अदब तमीज़ में भी अच्छी है। अक्सर इसके बारे में यही सोचती। माई खैरा कमरे में आई तो वह भी बिस्तर में ही थी। सुर्ख जालीदार लिबास में इसका दुधिया बदन चांदनी की तरह बिखरा जा रहा था। वह बहुत कम उम्र थी। ख्वाबीदा आंखों में रत जगह के सुर्ख डोरे थे। बिस्तर से उतरकर इजी चेयर पे जा बैठी थी। कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े बिस्तर से जमा करते माई खैरा ने ज़ेरे लब मुस्कुरा कर इसे देखा। क्या बात है धिये, आज कुछ चुप चुप सी हो? हाँ, कुछ नहीं अम्मा, बस थकावट सी है। अपनी गर्दन को दबा रही थी। अच्छा अच्छा, मैं समझी घर वाले याद आ रहे हैं। माई खैरा ने आम से लहजे में कहा था, पर वो कदरे चौंक सी गई थी। यूँ जैसे कोई भोली बिसरी चीज़ अचानक ध्यान में आ जाए। कहो तो तेल लगा दूँ, मालिश करूँगी तो सारी थकावट उतर जाएगी। काम ख़त्म कर लो तो फिर।
माई खैरा ने काम ख़त्म करके दिल जमी से तेल की मालिश की थी बालों में, कंधों में, और यहीं से इन दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ हुआ था। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। खिड़की से तारों भरे आसमान को देखती रही, फिर खिड़की बंद करके बिना आहट किए अपने बेड पर आ टिकी। सुल्तान ने मुंदी मुंदी आंखों से इसे देखा। नींद ही नहीं आ रही? अब आ रही है। इसने फ़ौरन ही आंखें बंद कर ली। ये पहली रात थी जब इसने अपने घर वालों को याद किया था। शायद अब भी ना करती अगर माई खैरा जिक्र ना छेड़ती तो। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे या दो हर्फ भेज कर चुप साध ली होगी। इसने एक एक चेहरे को याद करने की कोशिश की, लेकिन सब खद्दो खाल गलत मलत हो गए थे। इसने शायद कभी इन चेहरों को इतनी तवज्जो, इतने ध्यान, इतनी मोहब्बत से देखा ही नहीं था कि वो अजबर हो जाते। वो ख़ुद परस्ती की इंतहाओं को छूती हुई लड़की थी जो ख़ुद से मोहब्बत करती थी, ख़ुद से मोहब्बत करने वाले को अपने लिए चुन लिया था। वो सुल्तान था, उसके दिल का सुल्तान, जो बारिश बनकर इसके तन मन को सैराब करता था, जो दिन रात इसके हुस्न के कसीदे पढ़ता था, घंटों इसे तकता रहता। वो हुस्न की देवी थी। सुल्तान इसका पुजारी था और पुजारी का काम है पूजा करना, देवी खा कोई भी हो। चाय दम पे रखी थी, वो मग निकाल रही थी जब हल्की सी आहट हुई। इसने पलट कर देखने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही सुल्तान इसके कमर में बाजू डालकर इसे अपनी तरफ घुमा चुका था। अरे अरे, इसने बमुश्किल ख़ुद को गिरने से बचाया था। कितनी जालिम हो तुम, इतने अच्छे मौसम में शौहर के बजाय चूल्हा संभाल लिया। चाय ही तो बना रही हूँ, और छोड़े मुझे, माई खैरा आ चुकी है, देख लेगी तो देख ले। वो क्या अपने शौहर से रोमांस नहीं करती होगी? मज़ीद इसकी तरफ झुका। अल्लाह सुल्तान, छोड़े ना, बावर्ची खाने में कौन रोमांस करता है? एक बार फिर मछली। हर नया शादीशुदा जोड़ा ढीठ इब्ने ढीठ था। इसकी बेबसी से पूरा पूरा फ़ायदा उठाता, दाएं आँख दबाता बाहर निकल गया था, जबकि जरनाब को कई पल लगे थे ख़ुद को संभालने में। बड़ी मोहब्बत करता है साहब आपसे। माई खैरा की बूढ़ी हंसी पर वो चौंकी, फिर मुस्कुराती। हाँ ये तो है, बड़ा खुशकिस्मत है जी, बीवी भी रच के सोहनी मिली है इसे। अच्छा, वो खुशकिस्मत है, मैं नहीं हूँ। जरनाब ने यूं ही छेड़ा। औरत की किस्मत तो मर्द से जुड़ी है। मर्द हंस कर देख ले तो औरत समझती है वो खुश नसीब है। वही मर्द निगाह फेर ले तो किस्मत बदलने में भी देर नहीं लगती। किसी एक की किस्मत दूसरे इंसान से वाबस्ता नहीं होती अम्मा, ये गलत फहमी है तुम्हारी। चाय बन गई है, 2 कपों में डालकर बेडरूम में ले आओ, जरनाब कहकर चली गई थी। बड़ी अक्खड़ है, माई खैरा ने कदरे नागवारी से देखा। उनके उम्र भर के तजर्बे को गलत फहमी का नाम देने में इसने पल नहीं लगाया था। माई खैरा को ये बात सख्त नागवार गुजरी थी। हाँ, अभी शुरू के दिन हैं बीबी, उड़ो हवा में, झूलो जितने झूले झूलने हैं, आखिर को तो ज़मीन पे आना ही है ना। इन्हें अपने तजर्बात पर पक्का यकीन था। फुप्पी नुसरत जुलेखा खातून के सामने सर पकड़े बैठी थी। नवी का ख़त्म हो गया। लड़कियां इतने दिनों में रो कर आधी रह गई थी। जुलेखा खातून सदमे से गूंग थी। अरे बीबी, दिल को संभालो ज़रा, उठो, अपना घर बार देखो, मुझे भी छुट्टी मिले। आखिर और कितने दिन यहाँ बैठी रहूँगी मैं? तुम्हें तो हालात की सब खबर है। 3 लौंडे वहाँ मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। कहाँ से खाते होंगे, क्या पहनते होंगे? माँ के बगैर तो कभी पानी का गिलास तक नहीं पिया उन्होंने। वो नेर बहाती अपने दुखड़े रोती जा रही थी। अल्लाह जाने किसकी नज़र लग गई, हंसता बसता घर उजड़ के रह गया। अच्छा, वो एक कम वक्त चली गई, बाकी तीनों को तो अपने आंचल में छुपाओ, उनका गम बांटो। जुलेखा खातून टुकर टुकर देखे जाती थी। जो चली गई है वो रसवाई की ऐसी खाक सर पे डाल के गई है जो हमें सदियों पाक व मुसफ़ा ना होने देगी। वो अपने बाल झाड़ रही थी, फिर अपना दुपट्टा उतारकर ज़ोर ज़ोर से झाड़ने लगी। फिर बिस्तर, पिछले कई दिनों से वो यही तो कर रही थी। फुप्पी नुसरत ने देखा और अपना कहा बोला कारत जाने पर सर थाम लिया। फुप्पी अम्मा, अगर तंगी है तो आप चली जाएं, हम संभाल लेंगी अम्मा को। आपसे फ़ोन पर रब्ता रखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर आ जाइएगा। सितारा बड़ी होने का हक़ अदा कर रही थी। आंखें नम, चेहरा नम, लहजा भीगा हुआ। बाकी तीनों को सब्र आ गया था, मगर सितारा की आंखें झिलमिलाती ही रहीं। वो पछताती थी और रोती थी, मैं क्यों उस रात सोती रह गई। ना मैं सोती, ना ये सब हुआ होता। अब इसे कौन समझाता, सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे होना था। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? मेरा दिल नहीं मानता यूँ तुम लोगों को बेसहारा छोड़ जाऊँ। तुम्हारी माँ को तो अपनी खबर नहीं, खैर करती हूँ कुछ। अगले रोज़ उन्होंने अपने दोनों बेटों सऊद हसन और दाऊद हसन को बुला भेजा।
वो आए तो इन्हें लेकर कमरे में जा घुसी, दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए। ये क्या है अम्मा? मेरा माँ जाया कब्र में पड़ा कुरलाता होगा। ज़िंदगी और मौत के बीच में मोहलत होती तो इंसान अपने सारे फ़र्ज़ निभा के दुनिया से रुखसत होता। अब बताओ क्या करूं? जवान जहान लड़कियां हैं, सौम और सलात की पाबंद। मुझे इनकी तरफ से कोई ख़दशा नहीं, लेकिन दुनिया से डरती हूँ। वो भी तो सौम और सलात की पाबंद थी। बड़े वाले ने ज़रनाब का हवाला देकर छेड़ा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और यहाँ मामला मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने का है। बताओ क्या कहते हो? मैं ताबेदार हूँ, जो आपका हुक्म हो अम्मा। सऊद ने माँ का इंदिया जानकर फरमाबरदारी दिखाई। देखा देखी दाऊद हसन ने भी सर झुका दिया। फुप्पी नुसरत ने दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसी सादतमंद औलाद। अगले दिन का सूरज तलू हुआ तो सितारा दाऊद और अम्मारा सऊद के साथ निकाह के बंधन में बांध दी गई। कोरी हथेलियाँ, मसले कपड़े, कंधों पर गम का बोझ। एक कदम आगे बढ़ाती तो 7 कदम पीछे को पलटती थीं। बाबुल के अंगना से यूं रुखसत होना था कि पहले बाबुल गया, फिर वो। एक ज़माना उनके दुख पे रोया, और एक ज़माने ने फुप्पी नुसरत की पीठ थपकी, जिसने फुप्पी होने का हक अदा कर दिया था। फवाद हसन दुबई में है, वो यहाँ होता तो रुदाबा को भी ले जाता। उन्होंने रुदाबा के बारे में अपनी मजबूरी जाहिर की। दोपहर तक ये सारा काफ़िला रुखसत हो गया। सितारा और अम्मारा की गर्दनों पर एहसान का बोझ तो लद ही गया था। अब शौहर नामदार इस बोझ को हल्का करते हैं या उनकी गर्दनों पे पाँव धरते हैं, ये उनकी किस्मत। वो दोनों होटल के निस्बतन सुनसान गोशे में बैठे थे। ज़रनाब जर्द रंग की साड़ी में मलबूस थी और सुल्तान के कंधे से लगी बैठी थी। रात अपने भरपूर तिलस्म के साथ इन दोनों पे असरअंदाज हो रही थी। सुल्तान झुककर उसके कान में कुछ सरगोशी करता, साथ ही अपने बाजू का घेरा इसके नर्म खुशबूदार वजूद के गिर्द तंग कर देता। खाना आने में अभी कुछ वक्त था। वो दोनों बांसुरी के लय पे बजने वाले गीतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तभी सुल्तान का मोबाइल बजने लगा था। कदरे नागवारी से सुल्तान ने अपने मोबाइल को देखा, फिर स्क्रीन पर रोशन नंबर देखकर कदरे चौंक सा किया। ये इसके दोस्त का नंबर था, वो दोस्त जो हमराज भी था। 1 मिनट, वो मुस्कुराकर कहता ज़रनाब से कदरे दूर जाकर बात सुनने लगा था। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था। ज़रनाब ने सुल्तान को एक लम्हे में परेशान मुतगय्यर होते देखा था। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद सुल्तान वापस आ गया। खैरियत? किसका फ़ोन था? एक दोस्त का था। खाना सर्व कर दिया गया था। सुल्तान ने मज़ीद बात करने का मौका दिए बगैर खाना खाना शुरू कर दिया था। ताहम ज़रनाब ने महसूस किया कि सुल्तान के अंदाज़ में पहली सी बेफिक्री, लापरवाही, गर्मजोशी का फुकदान था। वो जैसे यहाँ सिर्फ खाना खाने ही आया था। ज़रनाब कमरे में दाखिल होते बुरी तरह चौंक गई थी। ये पहला मौका था कि सुल्तान को सिगरेट पीते हुए देख रही थी। आप सिगरेट पीते हैं? हाँ। नहीं, यूँ ही बस कभी कभार। फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, खिड़की खोल कर सिगरेट बाहर उछाली और इजी चेयर पर आ गिरा। इसकी आंखें बंद थीं। ज़रनाब को फ़ौरन फ़िक्र लाहक हो गई। रात के इन लम्हात में ज़रनाब को करीब पाकर इसका जुनून, इसकी वारफ्तगी इसे बेखुद कर दिया करती थी। फिर आज वह आंखें मूंदे बैठा था। बेसाख्ता ही 2 जानों इसके कदमों में बैठ गई। क्या हुआ है सुल्तान? मॉम बहुत बीमार हैं जनाब, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ओह, इसकी समझ में नहीं आए किस मौका पर वो क्या कहे। मुजम्मिल बता रहा था उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। ना वो खाती हैं ना पीती हैं, बस एक ही ज़िद है कि कहीं से सुल्तान सामने आ जाए। ज़रनाब का दिल धड़कने लगा। सुल्तान खामोश हो गया था। मैं चाहता हूँ कि जाकर उन्हें देख आऊँ। वो जैसे इससे इजाज़त चाह रहा था। मैं भी साथ चलूँ? नहीं, तुम्हारे जाने से मसला बढ़ सकता है। मैं जानता हूँ इस वक्त पूरा ख़ानदान उनके गिर्द जमा होगा। कोई भी तुम्हें अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करेगा और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ज़रनाब ने अपना सर उसके घुटनों पे टिका दिया। सुल्तान की उंगलियां हौले हौले इसके बाल सहला रही थी। तुम यहाँ रहकर मेरा इंतज़ार करना। माई खैरा से कह दूँगा वो दिन रात तुम्हारे पास रुकेगी और इससे अगली रात इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ हूँगा। सुल्तान की उंगलियां इसके गालों को, गर्दन को सहला रही थी। गोया जाना तय है। अंदर से बुझ सी गई। वो तय नहीं कर पाई थी कि सुल्तान को वापस चले जाना चाहिए या नहीं। अब तक वो दोनों अपने अपने घर वालों की नज़रों से ओझल थे। सुल्तान, वो तुम्हें वापस आने देंगे ना? सुल्तान इनके इशारों पर नहीं चलता। सुल्तान का दिल, जान, रूह, चैन, सुकून, करार सब कुछ यहाँ है। सुल्तान को वापस आना ही पड़ेगा। वो इस पे झुक गया। ज़रनाब को मोहब्बत की शिद्दत ने एहसान मंद सा कर दिया था। सुल्तान, तुम बहुत अच्छे।
وہ کہنا چاہتی تھی، سلطان کی بے قراری نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ چراغ کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ضرور ہے۔ اس کی محبت کا چراغ بھی بھڑک رہا تھا، بجھنے کے لیے۔ سلطان چلا گیا۔ زرناب کے دل کو جیسے پنکھے سے لگ گئے۔ مائی خیراں اس کے پاس تھی، اپنی باتوں سے اس کا دل بہلانے کی پوری کوشش کرتی ہوئی، لیکن زرناب کے دل کو چین و قرار کہاں۔ دسیوں میسیجز کرتی ہے، ہر 2 گھڑی بعد فون کال، آخر فون شام 4 بجے اٹینڈ کیا تھا اس نے۔ موم کے پاس اسپتال میں ہوں، اب فون مت کرنا، میں خود تم سے رابطہ کروں گا، وہ نرمی سے لیکن نہایت مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرناب نے نہایت سعادت مندی سے اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ آنکھیں، کان اور دل موبائل سے چپکے رہے۔ اب بجا کہ تب کال آئی ہے، میسج، لیکن فون کو نہ بجنا تھا اور نہ بچا۔ سلطان کو نہ آنا تھا، نہ آیا۔ 4 دن ہو گئے تھے سلطان کو، اور ان 4 دنوں میں یوں تڑپی تھی جیسے بن پانی کی مچھلی۔ سلطان کے سارے نمبر بند تھے۔ کیوں؟ اس کیوں کے بعد جتنے جواب آتے تھے وہ جواب نہیں سنبھالے تھے، اسے ڈستے تھے اور اس کے رگوں میں اندیشوں کا زہر بھرتے تھے۔ یا اللہ، مجھے موت آ جائے لیکن میرے ساتھ ایسا نہ ہو۔ وہ 3 ماہ میں پہلی مرتبہ جائے نماز پہ بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی تھی، قدم رکھنے کو جگہ آگے تھی نہ پیچھے۔ مائی خیراں گھر کی خیر خبر لینے گئی تو رات وہیں ٹھہر گئی۔ موسم خراب تھا، فلیٹ تک آنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ زرناب کی جان پہ بن آئی۔ اس رات دروازے کھڑکیوں پر آنکھیں اگائی تھیں، کمروں راہداریوں میں اجنبی قدموں کی چاپ گونجتی تھی۔ زرناب کی انگلیاں کوئی 1000ویں مرتبہ سلطان کا نمبر ملا چکی، تب کہیں جا کر پہلی مرتبہ دوسری طرف بیل جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ زرناب تڑپ کے اٹھ بیٹھی، جیسے گھوپ اندھیرے میں کوئی جگنو چمکتا ہے تو روشنی کی آس امید بن سی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا دل بھی اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی سلطان بولے گا، ابھی وہ سلطان کو سنے گی۔ رسیور نہیں، لیکن سلطان نہیں بولا۔ فون اس کی موم نے ریسیو کیا تھا۔ پھر جو کچھ انہوں نے کہا، اسے سننے کی تاب زرناب میں نہیں تھی، پھر بھی اس نے سنا۔ اس سے پہلے کہ کوئی واسطہ، کوئی ترلا، کوئی منت کرتی، فون بند کر دیا گیا تھا۔ بھور بھوری مٹی کی طرح زمین پر ڈھہ گئی۔ موسم خراب تھا، بلکہ خراب تر۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی کی کڑک زوردار تھی۔ بارش تھی یا کوئی طوفان تھا جو اس کی ساری ہستی کو لک سے ککھ بنا کے اڑا لے گیا تھا۔ محبت میں یہ مقام بھی آتا ہے۔ زرناب کو اندازہ ہوتا تو محبت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ مائی خیراں کو اس کی حالت سے خوف آنے لگا تھا، کہیں مرمرا گئی تو میرے سر ہی نہ پڑ جائے۔ کسی زمانے میں بڑی منجھی ہوئی دائی تھی، پھر حاملہ عورتوں نے اسپتالوں کا رخ کیا تو اس نے بھی اپنے کام سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر غریب غربا کی بہو بیٹیاں ابھی بھی اس پر اعتماد کرتی تھیں، اور مائی خیراں کو 101% امید تھی کہ زرناب ماں بننے والی ہے۔ ارے وہ نہیں آتا تو اپنے میکے سے ہی کسی کو بلا لو، یوں بغیر کھائی پیے روتے دھوتے تو اپنی جان سے جاؤ گی تم۔ اس کی حالت دیکھ کر دہائی دے رہی تھی۔ زرناب تو شاید اسی ایک لمحے کے انتظار میں تھی کہ جان کب جاتی ہے۔ مہینہ ختم ہونے کو ہے، صاحب واپس نہیں آئے تو میری تنخواہ کون دے گا؟ اور اگر تنخواہ نہ ملی تو بتاؤ بھلا، اور کتنے دن تمہاری مزاج پرسی کو آؤں گی؟ میرے کون سے دھیے پتر ہیں جو کما کما کر کھلائیں گے؟ میری تو یہی کمائی ہے، اسی سے پیٹ پوجا کرتی ہوں، اسی سے تن ڈھانپتی ہوں۔ جوان جہان اکیلی عورت، فلیٹ بھی کرائے گا۔ میری مانو تو صاحب کے گھر چلی جاؤ۔ زرناب کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ داستان کیا ہے۔ اگر کہو تو میں ہوں تمہارے سسرال یا میکے؟ ماں باپ آخر گلے لگا ہی لیتے ہیں، اولاد جیسی بھی ہو۔ مائی خیراں کا آخری حربہ، ان کے لیے تو مر گئی ہوں گی اماں۔ یہ شاید ان سب کو مار دیا میں نے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان اپنے گھر پہنچا تو اسے لعنت ملامت کرنے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ایسی آؤ بھگت ہوئی کہ سلطان احسان مند سا ہونے لگا۔ اسی احسان مندی کو اس کے گھرانے نے پوری طرح استعمال کیا تھا۔ ماں بیمار تھی، اتنی نہیں جتنی سلطان کو دکھائی جا رہی تھی، اور بیمار ماں کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ بہت سے تیروں میں سے کوئی نہ کوئی تو نشانے پہ جا ہی لگا تھا۔ اس کی منگیتر اپنے نمکین حسن کو اس پہ نچھاور کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ ساس سسر ورلڈ ٹور کے ٹکٹ ہاتھ میں لیے پھر رہے تھے۔ اگر یہ نہیں کرو گے میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ باپ کے غصے کا ایک عالم گواہ تھا، اور پھر یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں تھا۔ اس کا اپنا بینک بیلنس ختم ہونے کے قریب تھا۔ ساری عمر کمایا تو نہیں تھا، ہاں کھایا اور اڑایا ضرور تھا۔
اگر آگ کر دیا کیا، خرچہ پانی رک گیا تو کیا کرے گا؟ رشتہ داروں کے سوال، اور پھر 3 ماہ کافی ہوتے ہیں کسی بھی حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ جو اندیکھی وادیاں اسے اپنی جانب کھینچتی تھی، ان سے وہ جی بھر کے سیراب ہو چکا تھا۔ زندگی ایک ہی بار تو ملتی ہے، اور اسے ایک ہی عورت کے ساتھ گزار دینا بے وقوفی ہے۔ اپنے نکاح نامے اور زرناب کے طلاق نامے پر دستخط کرنے سے قبل اس نے ایک پل کے لیے یہی سوچا تھا۔ تنگ سی گلی تھی، انتہائی غلیظ، بدبودار، جس کے دونوں اطراف میں ماچس کی ڈبیوں جتنے گھر بستے تھے۔ یہ بند گلی نہیں تھی، یہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ گلی آدھا گھر تھی۔ یہاں انہی گھروں کے ننھے منھے بدوضع سے بچے دن چڑھے سے شام ڈھلے تک کنچے کھیلتے، مٹی چوستے اور غلیظ گالیاں بکتے، لڑتے جھگڑتے تھے۔ بان کی 2 چارپائیاں ہمہ وقت بچھی رہتی، جہاں عورتیں بیٹھ کر زمانے بھر کی باتیں کرتیں، بچوں کو کوستی، سبزی بناتی، گیلے بال سکھاتی، سوئی دھاگے سے کرنے والے سارے کام نمٹاتی، اور بڑی بوڑھیاں حقہ گڑگڑاتے ہوئے اپنے وقتوں کی باتیں کرتی۔ شام ہوتی یہ چارپائیاں اور گلی ویران ہو جاتی، باہر کا سارا شور گھروں میں منتقل ہو جاتا، اور رات کا اندھیرا چھاتے ہی 2-4 مرد ان چارپائیوں پر خراٹے لینے لگتے۔ گلی میں سایہ کرنے کے لیے گلی کے اوپر چھت ڈالی گئی تھی، برابر و ہموار چھت نہ تھی، بساط بھر چھت ہر گھر کے سامنے، کہیں ٹین کی چھت، کہیں پرالی، اور کہیں صرف پرانے ٹینٹ کے چیتھڑے۔ گرمیوں کی بھری دوپہروں میں ننھی چڑیا میں پرالی میں سے اپنے من پسند تنکے چراتی اور گھروں کی چھتوں کی کڑیوں میں ایک نئے گھر کی بنیاد رکھتی۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر مائی خیراں کا بھی تھا، جو دن بھر خالی رہنے کے سبب چڑیوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ وہ ایک تنکا گھونسلے میں لگاتی تو 10 نیچے گرا دیتی۔ مائی خیراں واپس آتی تو جی بھر کے ان چڑیوں کو کوستی، جو وقت بے وقت گھر میں گند اور شور پھیلائے رکھتی تھیں۔ پانی سے بھرے مٹی کے کٹورے میں زرناب کو اپنی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چند گھونٹ پانی پی کر کٹورا مائی خیراں کو واپس کیا، پھر وہیں باندھ کی کھردری چارپائی پر ڈھہ گئی۔ مائی خیراں نے کمرے سے ایک تکیہ لا کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور خود صحن میں پانی بہانے لگی۔ سارا دن لوگوں کے گھروں کو چمکاتی ہوں، اور میرے اپنے گھر کی حالت دیکھو۔ مائی خیراں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، شاید دھیان بٹانے کو، لیکن اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس کے گھر میں آ کر بھی نہیں آئی۔ فلیٹ کا کرایہ پورا ہو گیا تھا، اب 2 ہی صورتیں تھیں، مزید کرایہ جمع کراؤ یا رخصت ہو جاؤ۔ زرناب پہ ایک نئی افتاد تھی۔ اس نے مائی خیراں کا پلو یوں دبوچا جیسے میلے میں کسی بچے کی ماں گم ہو جائے تو وہ کسی بھی رحم دل، نرم دل عورت کا پلو تھام لیتا ہے، مامتا کی تلاش میں۔ مائی خیراں اور کیا کر سکتی تھی؟ اسے لے کر اپنے 2 مرلے کے گھر میں چلی آئی۔ جس طرح سونے کا نیا نکوڑ چمکدار بندہ کیچڑ میں گر جائے، چمکدار بندہ کیچڑ میں گر جائے تو جھٹ سے نظر میں آ جاتا ہے، اسی طرح زرناب کی اس گلی میں آمد ہوئی تھی۔ دودھیا رنگت، جسے چھونے سے ڈر لگتا ہو کہ میلی ہو جائے گی، چوٹی کی شکل میں بل کھائے سنہرے بال، شہد رنگ کھوئی کھوئی سی آنکھیں، اور پھر قیمتی لباس۔ عورتیں چارپائیوں سے اٹھ کر مائی خیراں کے آنگن میں جمع ہو گئیں، اور مائی خیراں کو کہہ رہی تھی کچھ غلط سلط لوگوں کو مشکوک کرتی۔ عورتوں نے جھٹ سے انگلیاں دانتوں تلے داب لیں۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اگلے کئی دنوں تک کے لیے ایک نیا عنوان، ایک نیا موضوع۔ شروع میں ان عورتوں کی باتوں میں، دلوں میں زرناب کے لیے تضحیک تھی، غصہ تھا، استہزاء تھا۔ لو، آ گیا مزہ پھر گھر سے بھاگنے کا۔ ایسی اتھری جوانی تھی، 4 دن صبر نہ ہو سکا۔ آخر ماں باپ کسی کھونٹے سے باندھ ہی دیتے۔ ماں باپ کو دغا دے کر نکلی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پڑی روتی رہے اپنے نصیبوں کو، اور وہ سچ مچ روتی تھی اپنے نصیبوں کو۔ میں سلطان کے شہر جاؤں اسے ڈھونڈنے؟ حالت دیکھو اپنی، دوسرے جی سے ہو، 2 قدم تو تم سے چلا نہیں جاتا۔ خیر خیریت سے فارغ ہو لو، پھر میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ فارغ ہونے میں تو کئی مہینے لگیں گے اماں۔ بے طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ بچہ گود میں لے کر جاؤ گی تو اچھوں کو دل نرم پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اپنے خون کو دیکھ کر ساس سسر ہی گلے سے لگا لیں۔ مائی خیراں ہر روز کوئی نہ کوئی میٹھی گولی اسے چوسنے کو تھما دیتی۔ اے مائی، یہ تو روز بروز کملاتی جا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کے پچھلوں کا اتا پتہ معلوم کر کے وہیں چھوڑاؤ۔ آخر کو ماں باپ ہیں، گالیاں کوسنے دیں گے، مار پیٹ بھی لیں گے، پر آخر بکل میں لے ہی لیں گے۔ پوچھ لو اس سے، کہے تو میں آج ہی چھوڑاؤں۔ مائی خیراں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی اور نظریں چرا جاتی۔
رات کی تاریکی میں جس در کو ٹھوکر مار آئی تھی وہاں کس منہ سے جاتی؟ اسے سلطان کو ڈھونڈنا تھا، واپس لانا تھا اسے، اس کے کندھے پہ سر رکھ کر رونا تھا، اس کے سینے میں منہ دے کر اب دنیا والوں سے چھپ جانا تھا۔ اس کی مضبوط پناہ میں رات بھر سکون کی نیند سونا تھا، بس ایک بار اس بچے سے فراغت پالوں۔ سلطان اگر اس روئے زمین پر ہے تو اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ وہ رات رات بھر آسمان کو تکتی، نت نئے منصوبے بناتی تھی، سونا تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے عورتوں کی نفرت اور غصہ ہمدردی رحم دلی میں بدلتا چلا گیا۔ کیسی معصوم صورت ہے، باتوں میں چالاکی نہ ہوشیاری، بس ٹکر ٹکر سب کی شکل دیکھا کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسی بھول پن میں ماری گئی، باتوں میں پھنسا لیا بیچاری کو۔ وہ آتی، اسے خوش رہنے مگن رہنے کے کئی طریقے بتاتی، وہ ان کے کہے پر اٹھتی، پھر تیورا کر گر جاتی۔ چہرے کی رنگت سفیدی سے زردی میں بدل رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بننے لگے تھے، جی متلانے اور سر چکرانے کا سلسلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جسم بخار کی طرح ٹوٹتا۔ نئی روح پرورش پا رہی ہے بدن میں، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ مائی خیراں اسے تسلی دیتی، پھر اس کی ایک انگوٹھی بیچ کر دوا دارو پھل فروٹ بھی لے آئی، لیکن کھاتا کون؟ ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہ اترتا تھا، دوائیوں کے بو سے جان جاتی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اماں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک روز تنگ آ کر اس نے مائی خیراں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مائی خیراں نے تنگ آ کر دوائیاں میز پہ پٹکیں، پلٹ کر دوبارہ پوچھا بھی نہیں تو نہ صحیح، میری بلا سے۔ پچھلے کئی دنوں سے مائی خیراں سوئی دھاگا لے کر بیٹھ جاتی اور رنگ برنگی قطرنوں کو جوڑ کر اس کے آنے والے بچے کے لیے لباس تیار کرتی رہتی۔ رات ہوتی، سب سامان لپیٹ کر اپنے صندوق میں رکھ چھوڑتی۔ اس روز جانے دل میں کیا آئی کہ ان کپڑوں کو دیکھنے کے بہانے صندوق کھول بیٹھی۔ سلطان، تمہارا بچہ لوگوں کی بچی ہوئی قطرنوں کا سوٹ پہنے گا، تم ایک بار پلٹ کر تو آؤ، دیکھو تو صحیح، دیکھو میں کس حال میں ہوں۔ اس نے بد دلی سے وہ کپڑے لپیٹ کر رکھے، تبھی صندوق کے ایک کونے میں شاپر میں لپٹے رجسٹرڈ ڈاک کے لفافے پہ اس کی نظر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ باہر نکالا، بنام زرناب احمد۔ اس کے پورے جسم کو جیسے کرنٹ لگا تھا، لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولنے اور پڑھنے میں سے چند سیکنڈز لگے تھے۔ یہ طلاق نامہ نہیں تھا، اس کے تابوت کی آخری کیل تھا۔ یہ لفافہ کہاں سے آیا؟ فلیٹ سے کون دے کر گیا؟ مائی خیراں نے اس سے چھپا کر کیوں رکھا؟ یہ سب ضمنی باتیں تھیں، اہم تھا تو صرف یہ کہ زرناب کی کتاب زندگی میں سلطان نام کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ وہ زرناب کی زندگی کا آخری سورج تھا جو شام غروب ہوا تھا، دوبارہ کبھی طلوع نہ ہونے کے لیے۔ وہ رات درد سے بھری پڑ رات تھی اور اس کا کوئی انت نہ تھا۔ زرناب کی زندگی میں اتنی طویل رات اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ کم عمر تھی، کمزور، نقاہت زدہ تھی، سب سے بڑھ کر ہمت حوصلہ ہار چکی تھی۔ ہائے ماں، بدن کو چیرتے ہوئے درد سے کراہی تھی۔ مائی خیراں نے اس سارے عرصے میں پہلی بار اسے ماں کو پکارتے ہوئے سنا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بے خودی میں، مدہوشی میں۔ کاش ماں تو میرے پاس ہوتی، میرے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھتی، مجھ پہ آیتیں پڑھ کر پھونکتی، میری اس اذیت کو بانٹ لیتی، مجھے سینے سے لگاتی، میری پیٹھ کو سہلاتی، دودھ اور گھی پلاتی، میرے لیے دعا کرتی۔ میں نے کیا کر دیا ماں، کیسے کر دیا؟ میں نے تجھے ہی کھو دیا۔ وہ سر پٹکتی تھی اور بڑبڑاتی جاتی تھی۔ اس کی غیر حالت میں محلے کی نرس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ تم نے غلطی کی مائی، جو اس کیس میں خود ہاتھ ڈال لیا، یہ تو سیدھا اسپتال کا کیس تھا۔ اچھا اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو چل اندر، کوشش تو کر۔ مائی نے نرس کو تقریباً دھکیلا۔ میری کوشش سے کیا ہوگا؟ اس نواب زادی سے کہہ کر خود کوشش کرے تاکہ اس کی جان بھی چھوٹے اور ہماری بھی۔ یا اللہ، تو ہی رحم کر۔ مائی خیراں نے دعا کی تھی اور اللہ کو رحم آ ہی گیا تھا۔ درد کی تیز لہر پہ اس کے بوٹی بوٹی وجود نے ایک طویل انگڑائی لی، پھر بے سدھ ہو گیا۔ اسی لمحے مائی خیراں کمزور لوتھڑا سی بچی دونوں ہاتھوں میں اٹھائی باہر نکل آئی، جس کا پورا بدن نیلو نیل تھا، اور وہ ننھے سے حلق کو پھاڑ پھاڑ کر گھر میں شور کیے جا رہی تھی۔ ستارہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں نے جنم لیا تھا۔ داؤد فخر سے سینہ پھلائی پھرتا تھا۔ 2 بیٹے، باپ کے دونوں بازو۔ پھپھی نصرت کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے، کبھی ستارہ کے لیے اجوائن کا پانی بناتی تو کبھی پوتوں کے لیے سونف ملا دودھ۔ بھائی کی یاد میں دل بھر آیا تو ایک پوتے کا نام احمد اور دوسرے کا احمد کرم رکھ چھوڑا۔ خدمت حکومت کراتی ہے،
सितारा जानती थी चुपचाप खिदमत किए जाती थी। यही वजह थी कि आज घर के हर फर्द के दिल पे इसकी हुक्मरानी थी। शौहर अक्खड़ मिजाज था, मगर आज घड़ी घड़ी इस पे झुका जाता था। कभी पेशानी पे हाथ धरता, कभी गालों पे। भूख, प्यास, दर्द, इसके पास सितारा के पल पल का हिसाब था। दवा अपने हाथों से खिला रहा था। इसके ऐन एक हफ्ते बाद अम्मारा ने गुल गोतनी सी बेटी को जन्म दिया था। सऊद ने बच्ची को बाजुओं में लेकर सीने से लगा लिया, आंखों में जुगनू से भर के। बेटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, इसकी तरबियत में कोई कमी मत छोड़ना। अम्मारा जानती थी इस बात का पस मंज़र क्या था। माँ बाप तो कभी भी नहीं चूकते, बस अपने अपने नसीब की बात होती है। कुछ लोग अपने लिए बखुशी जहन्नुम का सौदा कर लेते हैं। इसने दिल में सोचा था, कहा कुछ नहीं। जुलेखा खातून के घर मिठाई का डब्बा गया तो रुदाबा मिठाई खाते हुए हंसती चली गई। लो भाई अम्मा, आपकी दोनों बेटियां अम्मियां बन गईं। इसने ज़बरदस्ती माँ को मिठाई खिलाई। फिर चुपके से दिल में सोचा, हो सकता है तीसरी भी बन गई हो। एक ज़रा सी सोच ही आई थी और इसे बुरी तरह उदास कर गई। मिठाई का डब्बा एक तरफ रखा और चुप होकर बैठ गई। सितारा और अम्मारा की शादी के बाद रुदाबा ने बेटी होने का हक अदा कर दिया था। माँ की जगह सिलाई मशीन संभाल ली थी। सुबह शाम मगन रहती, सफाई सुथराई, घर के सारे काम, धुलाई, फिर माँ की जिम्मेदारी जिसे जी जान से निभाती थी। माँ को नहलाती, धुलाती, साफ़ कपड़े पहनाती, नाखून काटती, बाल बनाती। एक रोज़ थक कर माँ के कदमों में बैठ गई। कितनी वीरानी है अम्मा, घर की तन्हाई से वहशत हो रही है। हम कब तक यूं ही रहेंगे, अकेले रहते, खुद से बातें करते। मैं तो थक गई अम्मा, तुम ही कुछ बोल दिया करो। माँ साकित नज़रों से देखती रही। रुदाबा को गुस्सा आ गया। मैं तो तुम्हें पहले भी कभी नज़र नहीं आती थी अम्मा, एक ज़रनाब क्या चली गई, तुमने तो हम तीनों से नज़रें ही चुरा ली। वो खुदा जाने कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही होगी, और तुम हो के। चटाख! ऐसा ज़ोर का थप्पड़ मुंह पे पड़ा था कि रुदाबा का गाल सनसना उठा था। कितने ही पल यूं ही गुजर गए। रुदाबा को होश आया, जुलेखा खातून ने इसे थप्पड़ मारा था। वह ज़रनाब के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती थी। रुदाबा की आंखों से आंसू भल भल बह निकले। उठकर वहाँ से भागना चाहा। जुलेखा खातून ने कलाई थाम ली। रुदाबा ने पलट कर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। आंसू? रुदाबा ने पलकें झपकी। आंसू तो तब भी उन आंखों में ना आए थे जब अहमद करम रुखसत हुआ, जब ज़रनाब ने धोखा दिया, जब दोनों बेटियां रोती, कुरलाती, पिया दे सुधारी। और आज आंसू? दफ़तन जुलेखा खातून ने इसे खींच कर अपने सीने से लगाया और फिर दहाड़े मार मार कर रोती। वो तकिए के सहारे बमुश्किल बैठी थी और माई खैरा को देख रही थी। जितनी देर घर में रहती, मुन्नी की खूब ही सेवा करती थी। बालिश भर की कमज़ोर सी बच्ची को वो नहलाती, धुलाती, पाउडर छिड़कती, फिर रंग बिरंगी कतरनों से सिए कपड़े पहनाकर इसकी गोद में डाल देती। वाह माई की किस्मत, अपनी कोख से औलाद को जन्म न दे सकी और दूसरों की बेटियों के लिए छप्पल छाया बन गई। मैं तो कहती हूँ अब इसका कोई नाम रख ही लो, मुन्नी ही कहलाई जाएगी। बख्तावर कैसा नाम है? माई खैरा मुन्नी को बना संवार कर ले आई थी। बख्तावर जचता है ये नाम इस पर। इसके लहजे में खुद ब खुद ही सख्ती दर आई थी। सांवली रंगत की कमज़ोर सी मुन्नी टुकर टुकर माँ को तक रही थी। तो वो रख ले जो जचता है। माई खैरा बुरा मान गई। ज़रनाब चुपचाप मुन्नी को दूध पिलाने लगी थी। बड़ी अजीब सी कैफियत थी। मुन्नी से मोहब्बत नहीं कर पा रही थी। वो इसे अपनी मोहब्बत की सज़ा लगती थी। कभी दिल चाहता जाए और इसे सुल्तान के दरवाजे पर डाल आए। जिसका खून है वही पाले। फिर दिल पे हाथ पड़ जाता, जो मुझे छोड़ गया इसे क्यों कबूलेगा। ऐसा ना हो किसी दारुल अमान, किसी यतीम खाने में डाल दे। इसे मुन्नी पर प्यार नहीं तरस आने लगता था। हांडी चढ़ाकर वो सफाई सुथराई में लग गई। माई खैरा का घर भी बड़ा अजीब था। माई खैरा की ही तरह इस घर में सब्ज़ा बहुत उगता था, खुद ब खुद, बिना किसी कोशिश के। चंद शाखें मुंडेर पे निकल आई थी तो कुछ पत्ते दीवार से सर उठा रहे थे। सहन की घिसी हुई सुर्ख ईंटों के बीचों बीच भी सब्ज़ा सर उठाता था, जो कदमों तले मसला जाता और फिर सर उठाने लगता, बिल्कुल इसी की तरह जिस तरह वो मसली गई थी और अब सर उठाने की कोशिश में थी। इसे यहाँ हमेशा नहीं रहना था और कहाँ रहना था वो भी नहीं जानती थी। मुन्नी के रोने की महीन सी आवाज़ आई तो वो उठकर चारपाई के साथ बांधी गई कपड़े की झोली तक चली आई। मुन्नी लागर थी और इसी लिहाज से चिड़चिड़ी भी। इसकी भूख ख़त्म होने में ही ना आती थी। हर वक्त का रोना, हर वक्त का चिल्लाना। ना वो खुद ढंग से सोती, ना ज़रनाब को आँख मींचने देती थी।
जरनाब कितनी देर इसे हाथों में लिए देखती रहती, इसके एक एक नक्श में सुल्तान की मुमासलियत खोजती, लेकिन माई खैरा कहती थी रंग के फ़र्क से वो बनी बनाई जरनाब थी। मौसम बदला, बारिशों ने डेरे डाल लिए। आए दिन बारिश, बाहर गली में खड़ा पानी, झींगरों और मेंढकों के टर्राने की आवाज़ें। इसी गलाजत और गंदगी से मुन्नी बीमार पड़ गई। हैज़े की वबा ने सारे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया था। मुन्नी रात से उल्टियाँ दस्त कर रही थी, नन्ही सी जान। 2-4 उल्टियों के बाद नक्काहत से माँ के चेहरे पर निगाहें जमाने की कोशिश करती तो जरनाब के कलेजे पे हाथ पड़ता, या अल्लाह मेरी मुन्नी को ठीक कर दे, बिल्कुल ठीक। वो इसकी दुबली कलाइयों को अपनी हथेली में भींचती, सीने से लगाती और इसके गालों को 1000 बार चूमती और रोती रही। अरे काहे को हलकान करती हो ख़ुद को, बच्चे यूं ही पलते हैं, कौन सी बीमारी है जो नहीं देखते। सारी गली में हर बच्चे का यही हाल है। वो सुलगती लकड़ियों के धुएं में पुदीने का पानी बनाती बोलती जा रही थी, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या अम्मा, इसी से जीने की आस बंधी है। ये ना होती तो शायद अब तक 1000 बार जान दे देती। वो मुन्नी जिससे वो मोहब्बत नहीं कर पा रही थी, 9 महीनों में इसके रोम रोम में बसने लगी थी। माई खैरा इसे पुदीने का पानी पिलाकर फ्लैट पे काम के लिए रवाना हो गई। मुन्नी को कदरे सुकून से सोता देखकर वो भी अपने कामों में जुट गई। ज़रा सूरज चढ़ा तो मुन्नी की हालत फिर बिगड़ गई। वो नंगे पाँव बाहर को लपकी, बांध की चारपाइयों पे बातों में मगन औरतों ने चौंकर इसे देखा। आपा जरीना, मुन्नी को देखना ज़रा। आपा जरीना पड़ोस में रहती थी। इसकी एक आवाज़ पर भागी चली गई। इसने मुन्नी को हिला जुला कर उलट पुलट कर देखा। अरे बेवकूफ़ लड़की, बच्ची तो निढाल पड़ी है। मुझे लगता है जिसमें पानी की कमी हो गई है। अब क्या करूं आपा, डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, अम्मा तो शाम को आएगी। मोहल्ले के पास फ्री कैंप लगा है, डॉक्टर आया बैठा है। हमीदा भी अपने बच्चों को चेक करवा के आई है, वहीं ले जाओ। मैं अकेली? वो घबराई। आशिक के लिए भी तो अकेली ही निकली थी घर से, ये तो फिर औलाद है। आपा जरीना ने आँख का कोना दबा कर इसे छेड़ा और न जाने कौन कौन से ज़ख्म खोल के रखती है। हलक में अटका आंसुओं का नमकीन गोला अंदर ही अंदर धकेल कर इसने मुन्नी को अच्छी तरह लपेटा, चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकली। चलो तुम्हें रास्ता दिखाई देती हूँ। आपा जरीना इसके साथ होली। आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ था। बादल ज़मीन पर झुके आ रहे थे, यूँ जैसे भी बरस कर हर चीज़ तहुबाला कर देंगे। मौसम के तेवर देख कर आपा जरीना रास्ते से ही लौट गई। चादर से मुंह ढांपे मुन्नी को सीने से लगाए फ्री कैंप तक पहुंच गई। खुले आसमान तले ही टेंट लगाकर 2-4 डॉक्टर और अमला धड़ाधड़ बच्चों को चेक करके मुफ्त अद्विया देते जा रहे थे। एक लंबी कतार थी जिसमें वो भी जा खड़ी हुई। खड़े खड़े टांगे दुखने लगी थीं। औरतों के धक्के, बच्चों का रोना पीटना, बादलों की गड़गड़ाहट। बारिश शुरू होने को है। डॉक्टर साहब स्कूल की बिल्डिंग में जा रहे हैं, मरीज़ वहीं आकर चेक करवा लें। जरनाब को बेबसी का शदीद एहसास हुआ। या अल्लाह, इसने मुन्नी की बंद आंखों को देखा। कितनी देर से सो रही थी, ना दूध का घूंट पिया था ना पानी। वो फ़ौरन कतार में से निकलकर एक तरफ हो बैठी, बोतल का ढक्कन खोलकर चंद कतरे पानी मुन्नी के मुंह में टपकाए तो अजीब सा एहसास हुआ। वो ढंग से सांस ना ले रही थी। पानी के चंद कतरे जो टपकाए थे वो भी होंठों के किनारों से बाहर बह निकले। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। इसके कदमों तले से जैसे ज़मीन सरक गई थी। मुन्नी, आंखें खोलो, पानी पी लो मुन्नी, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, माँ को देखो। मुन्नी जूं की तूं सो रही थी। वो इसे दोनों बाजों में उठाए भागी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को देखें, प्लीज़ प्लीज़ इसे देखें, आंखें नहीं खोल रही। इससे कब्ल के डॉक्टर उठता वो इसके सर पे जाके चिल्लाई थी। ऐसा कर्ब था लहजे में कि डॉक्टर ने झट से मुन्नी को इसके हाथों से लेकर अपने सामने लिटा लिया था। वो मुन्नी की नब्ज़ चेक कर रहा था, आंखों के पपोटे खोल रहा था, स्टेथोस्कोप सीने से लगा रहा था और वो मुंतज़िर थी मुन्नी भी आंखें खोलेगी, इसे देखेगी। डॉक्टर ने अच्छी तरह अपनी तसल्ली करने के बाद मुन्नी को इसी ओढ़नी में अच्छी तरह लपेट दिया था जिसमें जरनाब इसे लपेट कर लाई थी। आई एम सॉरी, इसकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर की बेहद मध्यम आवाज़। जरनाब के हाथ से चादर का पल्लू फिसल गया। ये क्या कहा है डॉक्टर ने? आंखें फाड़ कर डॉक्टर को देख रही थी और डॉक्टर इसे। दोनों तरफ बेयकीनी सी बेयकीनी थी। मर गई? ये कैसे हो सकता है? मुन्नी, इसने पुकारना चाहा।
सांस और आवाज़ दोनों ही सीने में अटक गई। इसने खोई खोई नज़रों से चार अतराफ देखा। लोग बोल रहे थे, बच्चे रो रहे थे, बादल गरज रहे थे, एक शोर था, हंगामा था, लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लाचार सी नज़रों से इसने डॉक्टर को देखा, जो हैरत की इंतहाओं पे खड़ा इसे ही देख रहा था। जरनाब, ये तुम हो? और इसके साथ ही जरनाब के तमाम हवास इसका साथ छोड़ गए थे इससे कबल कि वो लहरा की गिरती। डॉक्टर फवाद हसन इसे दोनों बाजों में संभाल चुके थे। इतना रोई थी वो, इतना कुरलाई थी कि आसमान का सीना भी शक हो गया। ऐसा बरसा कि गलियां और बाजार घुटनों घुटनों पानी से भर गए। माई खैरा मुन्नी के गम में रोती अपने सहन में भरते पानी टपाटप बरसती छत को देखती थी। घर खाली और सुनसान हो गया था। मुन्नी खाल के हकीकी से जा मिली और जरनाब की गैर होती हालत के पेश नज़र नींद का इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर फवाद हसन इसे अपने साथ ही ले गए। माई खैरा मुन्नी के रंग बिरंगी कतरनों से सिले हुए फराक अपने सामने फैलाई बैठी थी। बारिश थम गई थी, लेकिन कमरे की छलनी छत थी कि अभी तक टपाटप बरसे जा रही थी। माई खैरा ने सारे फ्रॉक ट्रंक में बहुत संभाल कर रखे और सहन में भरे पानी को बाल्टी की मदद से बाहर गली में निकालने लगी। और वो वहाँ थी जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ मरकर ही वापस आना चाहती थी। बाहर आंगन में हलचल मची थी। सितारा और अम्मारा आई थी, फुप्पी नुसरत भी थी। कमरे के दरवाजे से झांक कर चली गई थी, अंदर नहीं आई। वो दोनों बाजों में मुँह दिए पड़ी थी। अभी तो मुन्नी के गम में बहुत सा रोना था। फवाद हसन, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं तो भूली बिसरी हो गई थी सबके लिए। तुम दर्द और तकलीफ़ भरी याद बनाकर फिर से ले आए मुझे। किस जोम में निकली थी यहाँ से, किस कसम पुरसी में लौटी हूँ। बेटी को खो कर आई हूँ तो बाप भी छीन चुका है, माँ पहचानने से इनकारी है। ज़िंदगी का ये कौन सा रुख है मेरे मौला? मोहब्बत अगर गुनाह है तो गुनाह की सज़ा इतनी कड़ी। इसकी समझ में नहीं आता था कि किस किस गम को रोए। कितने दिन बीत गए, वो निढाल पड़ी रही। लोग आए, इसकी हालत ज़ार पे तासुफ़ का इजहार करते लौट गए। मिलने की ख्वाहिश करते तो रुदाबा फरिश्ता बनकर दरवाज़ा भेट देती। बेटी फौत हो गई, इसी के गम में निढाल पड़ी है। लो ख्वामखा गम कैसा, शुक्र का कलमा पढ़े। अच्छा हुआ पल्ला झाड़ कर आई है, किसी नए खूंटे से बांधने में आसानी होगी। पराए माल की जिम्मेदारी कौन उठाता है? भागी हुई औरत की औलाद, अल्लाह तौबा। अब ना मरती तो ज़माने ताने दे दे कर मार देता। पता नहीं कैसी बेदर्द जालिम ज़ुबान थी बोलने वालों की। रुदाबा सर थाम कर बैठी रही। क्या करती? हर दुख दर्द में दवा दारू करने वाले यही लोग थे। इन्हें झड़क भी नहीं सकती थी कि इनके एहसानों का टोकरा बहुत भारी था, जो सर पे धरा था, और वो ज़र्फ़ की मारी मजबूत थी, दोनों हाथों से थामे रखती थी। बहुत दिनों बाद वो कमरे से निकली थी। चेहरे की झुलसी हुई रंगत, बदरंग बाल, हुस्न की चमक और नरमी खो चुकी थी। स्याह पड़ते होंठ, मैली फटी हुई एड़ियाँ, घिसा हुआ लिबास। रुदाबा की सरार पर इसने नहाकर नया पुराना जोड़ा पहन लिया था, और इस जोड़े में जरनाब थी कि पहचानी ही नहीं जा रही थी। मैली सी बदरंग उजड़ी हुई जरनाब, और जरनाब खाली सोना थी कहाँ, वहाँ तो बस पीतल ही पीतल था। रुदाबा बर्दाश्त ना कर पाई तो आंखों में आई नमी को लिए कमरे में जा छुपी। जरनाब बहन की इस मोहब्बत पर एहसानमंद हुई। कितनी अजीब बात थी, अभी तक किसी ने इससे कोई सवाल ही नहीं किया था। ये शायद ज़रूरत ही नहीं थी। फवाद हसन माई खैरा की ज़ुबान सब कहानी सुन चुका था। जरनाब के साथ आए कुल सामान में सिर्फ इसका तलाकनामा और मुन्नी का मुर्दा वजूद था। फिर पूछने को बाकी क्या रह गया था? वो रोज़ाना चला आता, कनखियों से जरनाब को देखा करता। ये वो लड़की थी जिसके लिए मामू ने इसके रिश्ते की बात की तो वो दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर मगरूर हुआ था। और आज वही लड़की, अतलस कम ख्वाब जैसी लड़की, किसी फटे पुराने मैले लिबास का एक चीथड़ा मालूम होती थी। फवाद हसन को एक इंतहाई कदम उठाना था, आखिरी फ़ैसला करना था, जिसे करने ना करने के बीच वो मुअल्लक़ था। हर रोज़ आता, देखता, सोचता और लौट जाता। फुप्पी नुसरत अपने सबसे छोटे और लाडले सपूत के अंदाज़ देख रही थी, चुप साधे बैठी थी। इन्हें वक्त के फ़ैसले का इंतज़ार था। वो प्यारी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती थी। बड़ी बड़ी आँखें, छोटी सी नाक, कटाव वाले होंठ, छोटी सी ठोड़ी। मैं इसे दूध पिलाते टुकर टुकर मुझे देखा करती थी। कभी कभार यूँ ही मुस्कुरा देती थी। वो रुदाबा को मुन्नी के बारे में बता रही थी। सियाह घूर आँखें थी, चमकती हुई,
अब तो 2 दांत भी झलक दिखाने लगे थे। आंसू एक लकीर की सूरत इसकी आंखों से बह रहे थे। अच्छा अब गम मत करो, भूलने की कोशिश करो सब, रुदाबा बड़े स्वभाव से कह रही थी। वो बेबसी से मज़ीद रोती, कैसे भूलूं इसे रुदाबा, भूलती ही नहीं। पूरे 9 माह खिलाया है मैंने अपनी गोद में इसे, 9 माह कोख में और 9 माह गोद में, कुल 18 माह। ज़ुलेखा खातून करीब बैठी थी, उनकी आवाज़ पर दोनों चौंकी। मैंने तुझे 18 साल पाला था। जरनाब सुन होकर रह गई। ज़ुलेखा खातून मामूल के सब काम अंजाम देती थी, बोलती नहीं थी। जिसने जाना होता है वो चला जाता है, साल और महीने तो पीछे रह जाने वाले गिनते हैं। अब वो बोल रही थी, वो बहुत छोटी थी अम्मा, इसने मेरे हाथों में दम तोड़ा, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बेखबर ही रह गई अम्मा। मैं भी बेखबर ही रह गई थी, मुझे भी पता नहीं चला था। दोनों अपना अपना गम रो रही थी। इसका चेहरा मेरी आंखों से जाता ही नहीं, हर वक्त वो दिखाई देती है। मुझे भी तुम दिखाई देती थी, चलते फिरते हंसते बोलते। इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि जरनाब रोना भूल गई थी। वो 18 माह की बच्ची तुम्हें हाल से बेहाल कर गई, और जिन्होंने 18 साल तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे नाज नखरे उठाए, तुम्हें मोहब्बत चाहत से नवाजा, तुम्हारे लिए दिन रात एक किए, तुम्हें उनका ख्याल नहीं आया? जरनाब खौफज़दा होकर माँ को देख रही थी, जो आज वहशत ज़दा थी। बोल रही थी, इसे आईना दिखा रही थी। 18 माह की बेटी को खोकर इसकी जुदाई का गम पालने बैठी हो। पहले मेरे गम का हजम देखो। मैंने 18 साल की बेटी खोई, मैंने अपने शौहर को खोया, अपनी तरबियत का मान फ़ख्र गरूर खोया, इज़्ज़त गंवा दी हमने सर उठाकर जीना खो दिया। और तुम क्या जानो जरनाब, हमने तुम्हारे पीछे क्या क्या खो दिया। तुमने हमें मिट्टी कर दिया जरनाब। तुम्हें क्या खबर, मेरी हीरा बेटियां सदके के पैसों की तरह लोगों की झोलियों में डाली गईं। तुम्हें क्या खबर जरनाब, हमने तुम्हारी मोहब्बत के एवज़ क्या क्या खो दिया। सारे नोहे सारे बैन एक एक करके जरनाब की झोली में गिरते चले गए। बोझ था बहुत, और वो नातवा, कैसे सहना था वो नहीं जानती थी। आज की रात अदराक की रात थी, आगही के अजाब के साथ उतरी थी। तो बस फिर मेरे साथ यही तो होना था। खुले आसमान तले कोहर आलूद रात में बैठी ठिठलती थी और उठने का यारा न था। बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ समझ में भी आ रहा था। माँ का थप्पड़ सह ना पाई थी, कुदरत ने इसे हालात के थपेड़ों पे रख दिया। इसने माँ बाप की मोहब्बत को ठोकर मारी थी, सुल्तान इसकी मोहब्बत को ठुकरा के चला गया। इसने घर छोड़ा, दरबदरी मुकद्दर हो गई। बेटी का गम दिया और बेटी का गम मिल गया। वो बेचैन रूह नंगे पाँव सहन की बर्फ़ ज़मीन पर चकरा रही थी। अब्बा इस दुनिया से चले गए, विरसे में एहसास है जुर्म मुझे दान करके। ये विरसा शायद मेरे हिस्से में आया है, तकसीम ना होगा। कहाँ से ढूंढूं मैं आपको अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा। मैं कैसे आपको वापस लाऊं, कैसे माफ़ी मांगूं आपसे। कैसा गम दिया मैंने आपको जो सह ना पाए। किस बोझ को दिल में लिए उठ गए आप। आखिरी लम्हों में क्या सोचा होगा मेरे बारे में, कौन सी बद्दुआ दी होगी, कैसा शिकवा आया होगा ज़ुबान पे। ये मैंने क्या किया मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। वो 2 जानों बैठी रो रही थी, बिलख रही थी। लेकिन जो वक्त गुजर चुका हो वापस कब आता है। रात का न जाने कौन सा पहर था। ज़ुलेखा खातून बंद आंखों से जाग रही थी, इसकी सिसकियाँ सुन रही थी। तभी खटका सा हुआ था। उन्होंने चौंक कर आँखें खोली। चारपाई की पाइंती थामे ज़मीन पर बैठी थी। आंसुओं से तर गाल उनके पाँव के तलवों से रगड़ती इल्तिजा कर रही थी। माफ़ कर दो अम्मा, खुदारा तुम तो माफ़ कर दो। मेरी सज़ा के लिए मेरे बाप और बेटी की कब्र ही काफ़ी है माँ, तुम तो माफ़ कर दो। ज़ुलेखा खातून तड़प कर उठी और इसे दबोच कर बुक्कल में दबा लिया। मेरी रानी, मेरी प्यारी बेटी, मत रो, माँ सदके, माँ कुर्बान, ना रो, मैं हूँ ना। इसे सीने में भींचे वो रोए जाती थी, और जरनाब भी। सहन में खूब रौनक थी। ये पहला दिन था कि सितारा और अम्मारा अपने बच्चों को साथ लाई थीं। वो भागते दौड़ते शोर मचाते थे, और बड़े उनकी देखभाल में शोर मचाते हलकान हो रहे थे। फुप्पी नुसरत और उनका पूरा घराना। फवाद हसन ने फ़ैसला सुना दिया था। वो रुदाबा से शादी करना चाहता था। सब ने सुना और इसके फ़ैसले पर सर झुका दिया। यही होना था, जैसे सभी को मालूम था। मैं सब कुछ भूल कर जरनाब को अपना भी लूँ, अपने ज़र्फ़ को आज़मा भी लूँ, तो आइंदा आने वाली नस्लों पे इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। जरनाब अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, अच्छी माँ कैसे साबित होगी। रुदाबा ने मुश्किल वक्त को जिस इज़्ज़त, आन, खुददारी, हौसला मंदी से बर्दाश्त किया है, क्या वो हक़ नहीं रखती कि इज़्ज़त, मोहब्बत, खुशियों भरी ज़िंदगी इसे नसीब हो।
پھپھی نصرت نے جواباً ایک لفظ نہ کہا، مٹھائی منگوائی اور بیچ صحن میں بٹھا کر رودابہ کو منہ میٹھا کرا دیا۔ زرناب باورچی خانے میں تھی۔ ستارہ اور امارہ نہ جانے کیوں آج اتنی مصروف تھیں کہ وہ چوکی پہ بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ اماں چائے کی لوازمات اسے تھما گئی تھیں۔ تم برتن نکالو، میں چائے لے جاتی ہوں۔ وہ اسے بچا بچا کر رکھنا چاہتی تھیں، کہیں ستارہ امارہ کے بچوں کو دیکھ کر اپنی بچی کو یاد نہ کرتی رہے، تینوں بہنوں کو آسودہ دیکھ کر اپنے غم کا ملال نہ کرے۔ وہ سب سمجھتی تھی۔ چولہے کے پاس بیٹھی ماچس کی تیلیوں کو جلا جلا کر ڈھیر کرتی رہی۔ باہر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور اندر درد ہی درد تھا، جو دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ بدن میں سفر کرتا تھا۔ یہ درد کب ٹھہرے گا زرناب نہیں جانتی تھی۔ صرف وقت تھا جسے ہر زخم مندمل کرنا تھا، اور صرف قدرت تھی جو جانتی تھی کہ درد کے قافلے کب خوشیوں بھری وادی میں اتریں گے اور اس کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔